So hello, good morning all of you. Are you all ready? You can say yes or no, guys. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay. So welcome to the first class for tax June 2021 attempt. The tax for this June attempt, it is going to be for the Finance Act 2020. ये नया Finance Act है. Okay, so just before I start, everybody understands Hindi here? Everybody? I am specifically addressing to Mondal. Mondal, do you understand Hindi? Mr. Sujit is also there. Okay. ठीक है. Okay, done. So I'll tell you the reason why I specifically asked this because I usually prefer कि क्लास को इंग्लिश और हिंदी मिक्स में रखें. इंग्लिश में थोड़ा सा इसलिए रखें बिकॉज कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं. अगर वो कीवर्ड्स मैं बार बार क्लास में यूज करूंगी वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे. और हिंदी इसलिए बिकॉज वी इंडियंस आर स्टिल विद दैट हैबिट कि हम जब किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि हमें हिंदी में हमारी लैंग्वेज में वो समझने को मिल जाए. So that's the whole idea. Now I'll start with the paper. I hope you all know me because my introduction has already gone in the email, so I will not waste time in again introducing myself. But before that, I'll just tell you a small story here so that you understand कि हम exactly करने क्या वाले हैं. So there was a small child. उस बच्चे ने जाके अपनी सिस्टर से पूछा, "दी what is 2 plus 2?" She said, "I think it should be 3.5 or 4." He was not satisfied. He went back to his cousin. He was an engineer. Engineer को जाके पूछा कि भैया what is 2 plus 2? Engineer ने बोला it's very simple यार 4. इसमें डाउट क्या है? Then he came to a tax advisor, either a chartered accountant or an ACCA. उससे जाके पूछा what 2 plus 2? Immediately उसने बोला how much you want? You tell me that I'll arrange. This is what tax paper is going to teach you. Whatever the client will look for, आपको वो देना होगा. Being an ACCA or being a chartered accountant, चाहे आप auditor हो, चाहे आप accountant हो, चाहे आप tax advisor हो, this is going to be the beauty of your profession. Tax बचाना आपका काम होगा. Books of accounts prepare करना आपका काम होगा. So just try to understand how this sequence will flow. Let's suppose you start working with a company. वहां पे you are handling the books of accounts. कितना net profit बनेगा उस पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट will come up and ask to pay you taxes. पे कर देंगे? Obviously not. That's what you are there for, to try to save some taxes for the company, right? तो आप टैक्स सेविंग करेंगे कैसे? आप टैक्स सेविंग कराएंगे कंपनी के लिए टैक्स रेगुलेशंस को समझ के. यानी ये प्रोफाइल है जो 2017 में इफ आई टॉक अबाउट इंडिया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए होंगे वो टैक्स कंसल्टेंसी में कमाए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2017. नाउ द टाइम हैज चेंज्ड. नाउ वी आर इन द 4th ईयर ऑफ दैट डेवलपमेंट. टैक्स एडवाइजरी में एसीसीएस भी एंट्री ले रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर वर्किंग इन ग्लोबल इकोनॉमीज जहां पे यूके की कंपनी होती है वो यहाँ पे किसी कंपनी को काम असाइन करती है अपने टैक्स हैंडल करने का. That means sitting here, you can serve someone sitting in UK to save some taxes for him. इस सारे पेपर में हम वो चीज समझेंगे. So I'll simply give you another example here. Let's suppose एक कंपनी है उसको कुछ 1 lakh pounds का टैक्स पे करना है. 1 lakh pounds. इसको नॉर्मली कन्वर्ट करो 100 की रेट पे. इट्स अ बिग अमाउंट देन. इस पे आपने उनका 50% टैक्स भी बचा लिया. सो यू अप्रोक्सीमेटली सेव हाउ मच पाउंड्स? 50,000 पाउंड्स. 50,000 पाउंड्स में से अगर आपने बेयर मिनिमम 5,000 पाउंड्स की भी फीस ली, कन्वर्टिंग इनटू इंडियन रुपी वो 5 लाख रुपीस हो गए. That is why this profession, this line, this profile is very money making profile. लेकिन इसको समझते कहां से है? यहीं से, इसी पेपर से. This paper is the base of tax advisory, tax consultancy.
So I started my career with EY with tax consultancy only. The only difference was I was dealing with Indian taxation as well as international taxation. What you will be dealing with is UK taxation. इसलिए पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पासिंग यू शुड नॉट रीड दिस पेपर. ट्राई टू मेक इट इन सच एन अटेम्प्ट कि आपको ये समझ में आए और अगर कल को जरूरत पड़े यू टर्न अप इनटू टेकिंग दिस प्रोफाइल एज योर जॉब प्रोफाइल. ट्राई वो करना. ठीक है, हम कैसे सिस्टम से चलेंगे वो सारी चीजें अभी आए स्टार्ट ब्रीफिंग, उसके बाद में थोड़ा सा टेक्निकल ट्रायल भी चलाएंगे so that first class में I do not heavily rain on you. थोड़ा थोड़ा सब चीज you are better able to understand. So I'll just share a screen with you. Just confirm me if you all can see that screen. Just a second, let me share that. Is the PPT there in front of you? Yes, ma'am. Okay, I have a problematic habit that I don't see the chat box very frequently. You can just unmute yourself and say a yes to it. That's absolutely okay. एक और चीज आपको Zoom का एक फीचर बताती हूँ. जहाँ पे आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, क्या ऊपर आपके पास एक ग्रीन लाइन आ रही है कुछ स्क्रीन शेयरिंग से रिलेटेड? उसमें स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस आ रहे होंगे कुछ. उन ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन करो और उसमें साइड बाय साइड व्यू में देखो. साइड बाय साइड व्यू में आप मेरी वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट मैं आपको ऊपर राइट में बहुत छोटी सी दिख रही होगी. साइड बाय साइड व्यू में यू कैन एडजस्ट कि स्क्रीन कितना चलेगा और मेरी वीडियो कितनी चलेगी. So that will make the class very interesting for you and you will not be forced to see me very small in size. Check करो एक बार, just try that if that works for you. स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एक बटन, ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, उसमें साइड बाय साइड व्यू इज व्हाट यू नीड टू ओपन. दिख रहा है? Yes, ma'am, कर लिया. ठीक है, so that is more comfortable. चलो, so let's begin. फाइनेंस एक्ट 2020 ये क्या है, टैक्सेशन में क्या आने वाला है, ये सब चीजें अभी समझेंगे. आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दूंगी कि फाइनेंस एक्ट हर साल अलग अलग होता है, तो ये सब क्या होता है, राइट? वो बिफोर दैट I will just share one of my accomplishments जो इसी से related है, which I never declare in front of anyone. 2015 जब इंडिया में फाइनेंस बजट लॉन्च किया गया था अराउंड इन February, I was a part of the panel discussion on NDTV 24/7 channel. It was telecasted across India. ये telling you is इंडिया में फरवरी के आसपास आपका बजट, फाइनेंशियल बजट डिक्लेयर होता है, फाइनेंस बिल पास होता है और उसके बाद में जब वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है. उससे पहले अलग अलग इंडस्ट्री के जो पैनलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे कम अप एंड इट इज डिस्कस्ड विद देम कि किसी भी प्रोविजन को अगर हम लेके आते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके सेक्टर पे क्या आएगा. So because I was handling directly the taxation part for EY, we were representing them. तो ऐसे में यही सिस्टम यूके में भी होता है. अलग अलग सेक्टर से लोगों को बुला के डिस्कशन किया जाता है. देयर इज अ प्रॉपर फोरम जहां पे किसी भी प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करने से पहले वो डिस्कस करके ही फाइनलाइज होता है. एंड वंस इट इज अप्रूव्ड इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट देन इट बिकम्स एन एक्ट. तो अभी तक जून से पहले तक फाइनेंस एक्ट 2019 आपके यूके का आपके लिए एप्लीकेबल होता था, लेकिन जून अटेम्प्ट से, जून 21 अटेम्प्ट से फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा. Although changes are not too much, but still, whenever you plan to buy the books, remember आपको फाइनेंस एक्ट 2020 खरीदना है. Be very cautious with that. ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं. What is exactly there with it? We'll understand 2-3 things. जब टैक्सेशन पेपर की बात हो रही है, इसका पेपर पैटर्न क्या है? It has got 3 sections: Section A, Section B, and Section C. Section A में 15 MCQs होंगे 2 मार्क्स के. So ये 30 मार्क्स का पोर्शन होता है सेक्शन A. 15 MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. MCQs अगर आई नॉट से, कईयों में आपको नंबर्स पंच भी करने पड़ेंगे, कई ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स होंगे, लेकिन ये सब के सब आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर पुट करने को बोलेंगे. कैलकुलेशंस विल नॉट बी रिक्वायर्ड. 15 questions, 2 marks each, making it a 30 mark portion.
सेक्शन बी, सेक्शन बी में भी यही होगा, 15 क्वेश्चंस, 2 मार्कर ईच, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। सेक्शन बी में 3 अलग अलग केस स्टडीज आएंगी। तो देयर विल बी केस स्टडी 1, केस स्टडी 1 में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच के। दैट मींस इसी केस से रिलेटेड होंगे ये पांचों क्वेश्चंस। ऐसे ही केस 2 आएगा जिसपे 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं मांगी जाएगी। केस 3 अगेन इसी केस के ऊपर 5 क्वेश्चंस होंगे, इन पे भी आपसे कैलकुलेशंस मांगी नहीं जाएंगी। सेक्शन ए और बी में कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होती है। Something which is right, you get 2 marks. Something which is wrong, you get 0 marks. Sorry, unfortunately ये केस है। सेक्शन सी, नाउ दिस इज द सेक्शन जो आपको बहुत सहारा देता है पास होने में। कैसे सहारा देता है? 3 केस सिनेरियोज आएंगे इसमें। One scenario would be of 10 marks, next 2 scenarios will be of 15 marks. ये सहारा कैसे देता है? इसमें स्टेप मार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि आप सारे सॉल्यूशन को एक्सेल पे करके एग्जामिनर को दिखाते हैं। तो इफ देयर इज अ केस जहां पे आपको एक ट्रांजैक्शन करना नहीं आ रहा है या फिर एक एंट्री में क्या उसकी कैलकुलेशन होगी वो नहीं आ रही है, सिर्फ उसका नंबर कटता है, बाकी सारे पे आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। सो वेरेवर देयर इज स्टेप मार्किंग, सेक्शन सी इज द वन हु बिकम्स अ सेवियर फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन सेक्शन सी पे भी रखेंगे, ए और बी पे तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन सेक्शन सी पे मेरा एम्फेसिस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। कारण सेक्शन सी में जहां पे 20 मार्कर क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, यही 10 एडजस्टमेंट सेक्शन ए में छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सेक्शन सी कवर करने का मतलब हो गया 70% सेक्शन ए कवर कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन ए नहीं कवर करना, कवर हम सब करेंगे। एग्जाम किट अप्रोक्सीमेटली हम 1/3 क्लास में करेंगे, बाकी आपको अपने आप करनी है, जिसको हम प्रॉब्लम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देयर इज वन मोर सिस्टम वी आर इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम दिस टाइम। 2 डेडिकेटेड प्रॉब्लम क्लासेस रखी जाएंगी। वी कैन डिसाइड म्यूचुअली कि प्रॉब्लम क्लासेस कब कब रखनी है, एक साथ एंड में रखने की बजाय वी कैन स्प्लिट कि 50% सिलेबस हो गया, एक प्रॉब्लम क्लास अब हो जाए, नेक्स्ट 50% बचा हुआ सिलेबस हो गया, फिर एक प्रॉब्लम क्लास हो जाए। बीच में वंस यू विल बी अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग आपस में सारे डिस्कशन प्रॉब्लम्स के कर सकते हो। जो प्रॉब्लम ऐसी रह जाए कि वो किसी से भी सॉल्व नहीं हो रही है, देन आई विल पिच इन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, राइट। अदरवाइज अगर बीच में मुझे किसी भी कारण से टाइम नहीं मिला, बिकॉज दिस क्वार्टर आई एम रनिंग ऑलरेडी 4 बैचेस के बाद में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पा रही हूँ, bring that problem in the live problem class. So we will have 2 problem classes separately for that, right? So the paper pattern is clear. Anybody having any confusion with the paper pattern? Anyone? Right? You can say yes or no. I don't mind that. No, ma'am. Thank you, Daksha. Okay, so this is the syllabus. Now look at the length of the syllabus. अच्छा लग रहा है ना देखने में? Bloody huge. 26 chapters. और 26 chapters में unfortunately I will cover each and every penny of every provision. Unfortunately. So I'll tell you the difference. Sometimes what happens is we claim कि हम 60 hours में इसको complete कराएंगे, but 70 hours is the average time which I will take to complete this. Why? I'll tell you the reason. एक छोटा सा provision होता है, उससे भी हम skip नहीं कर सकते, because if that comes in the exam, you won't get the correct answer. इसलिए प्रोविजन तो कोई भी मिस नहीं हो सकता। हाँ, हम थोड़े से इस बेसिस पे जरूर चल सकते हैं कि इनमें से कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो मैंने रिकॉर्डिंग्स करी हुई है। नाउ रिकॉर्डिंग्स आर नॉट मोर देन 10-15%, उससे ज्यादा की नहीं है, और वो भी उन्हीं टॉपिक्स की है जो बिल्कुल ही स्ट्रेट चलते हैं। नाउ व्हाई आई हैव टू डू दैट, लेट मी जस्ट शो यू दीस नंबर ऑफ क्लासेस। These first 2 chapters will take 2 classes, then these 2 will take 2 classes. Pension and NIC have already been recorded. Why? I'll tell you. They are pretty very small chapters, just 2 to 3 pages के chapters है, लेकिन इनको रिकॉर्डिंग करने का कारण ये है, आप में से बहुत लोग वर्किंग है, वीकडेज में क्लास हो नहीं पाएगी। ऐसे में जो नॉन वर्किंग है, if they want to run a bit fast in their syllabus, they can access these recordings. And even those who are just working, वो ऑड आवर्स में भी क्लास का वेट करे बगैर इनको सुन सकते हैं। These recordings are not more than आधा घंटा, not more than उस, लेकिन क्लास को रखना और इनके ऊपर फर्दर 2 क्लासेस लगाना, इससे अच्छा है कि हम उन 2 क्लासेस में एग्जाम की प्रैक्टिस करें।
बट स्टिल इफ द बैच वांट्स कि नहीं मैम हमें इसमें लाइव क्लास ही चाहिए, हम वो कर सकते हैं, बट देन इन दैट केस बी प्रिपेयर्ड कि हमें फिर 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा लगेंगी जो वीकडेज में रखनी मजबूरी होगी, बिकॉज 60 आवर्स की क्लासेस पूरे वीकेंड में आ नहीं पा रही है इन एनी केस बिकॉज ऑफ द लॉन्ग सिलेबस। हाँ, कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट इन अ क्लास, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गिविंग रिकॉर्डिंग इज नॉट दैट you are on your own, it's just that if you want to run before me you have something in your hand to read, right? So ये कुछ इसका प्लान रहेगा। we will try to complete this syllabus max to max by 15th of May, 15 दिन आपको खुद के पढ़ने के भी मिले। now how do we go ahead with that? एग्जाम किट हमें साथ साथ करनी होगी, इसकी साथ साथ करने में शुरू के कुछ चैप्टर्स में हम एग्जाम किट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एग्जाम किट के क्वेश्चंस 7-8 चैप्टर्स को मिला के है सेक्शन सी के। ए और बी हम साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन सी 5-6 चैप्टर्स का क्लस्टर बन के ही हो पाएगा बिकॉज इवन वन क्वेश्चन विल हैव 5-6 चैप्टर्स टुगेदर इन द सेम क्वेश्चन। तो जब तक हम 5-6 चैप्टर कर नहीं लेंगे तब तक हम सेक्शन सी चालू कर नहीं पाएंगे, लेकिन ए और बी वी विल स्टार्ट। तो 15 मई तक एक टारगेट ये रखना कि हम पूरा का पूरा एग्जाम किट वंस एटलीस्ट हम 15 मई तक डन कर दें। बचे हुए 15 डेज आई अगेन गिव यू अ प्लान ऑफ एक्शन जिसमें आप रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे लास्ट वीक में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बाय 23rd और 25th ऑफ मई, जो विद इन आपको 1.5 days I will evaluate them and you will get them back and then you will have to improve upon your weaker areas. So बिल्कुल एंड मोमेंट पे मॉक टेस्ट नहीं होंगे, कुछ 5-6 दिन पहले होंगे एग्जाम के। एंड अगर इस बार भी रिमोट एग्जाम्स हो गए 2 वीक्स तक चलते रहेंगे फिर पेपर। So let's just hope for that. So this is how we will go. Now let's just technically start the content. Any problem with any of these slides? The content portion, how will we go? Any confusion with anything? Please feel free to ask me. Right? No, Live class है। No questions, ma'am. Okay. Chalo. Okay, so now let's just start looking into the technical portion. UK tax system, this is chapter number 1. Before I start this, let me show you the book also कि इसमें आपकी book कैसी दिखती है। Book you will have to purchase, but yes, it's there with me in soft copy, but on Kaplan's website. So वो थोड़ी सी I will have to just show you कि ये है कैसी, दिखती कैसी है। Can you see the study text? दिख रही है? ACCA taxation UK दिखा हुआ है या फिर zoom screen दिख रहा है? yes ma'am, दिख रहा है। ठीक है, just a second, let me just. So this is your book. Now how does it look? This is the latest one. March 2022 तक के लिए applicable रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि max to max, because see I have also started suggesting some of the students जो working है कि अगर आप इसको एक quarter में complete नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको complete करिए 6 month period में। So if by any chance you are not able to complete this syllabus by June, then sit for this exam in September along with one more paper. So that is one of the ideas you can take if you are working and not able to give time. लेकिन टैक्स को एक क्वार्टर में करने के लिए डेली आपको 3 घंटे पढ़ना है, डेली। So this is the content. This is Kaplan 23, then 27. Ideally 26 chapters ही है, 27 में तो past year papers कुछ discussed है जो मैं एग्जाम किट में हम करेंगे, right? एक और चीज इसमें सबसे अच्छी बात है, जो मेजर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं रेट्स के, वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन इसका करना चालू करेंगे तो हम ऐसे केस में वो वाली लिस्ट को भी साथ रख के करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो हमें लर्न नहीं करनी है और कौन सी चीजें हैं जो लर्न करनी है, राइट? पीपीटी अगेन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, पीपीटी सामने आ गई? yes ma'am। Okay, so let's begin. अभी कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें, so it's just the understanding of the UK tax system. नेक्स्ट वाली क्लास में उसकी जरूरत पड़ेगी। UK tax system, सबसे पहली चीज, किसी भी कंट्री में टैक्स सिस्टम लगाया क्यों जाता है? सो लेट मी से आई एम द गवर्नमेंट, मुझे देश चलाना है, पैसे कहां से लाऊं देश चलाने के?
आई कैन नॉट जस्ट पुट इन माय पेरेंटल प्रॉपर्टी कि चलो देश चलाएंगे, मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी से देश चलेगा भी नहीं. एवरीबडी विल हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग. इसीलिए टैक्सेस पिक्चर में आए. जो पहले ब्रिटिशर्स जब हम पे रूल करते थे तब ये टैक्सेस की बजाय लगान के रूप में होता था. लगान के रूप में, इफ यू हैव सीन दैट हिंदी मूवी आल्सो, टैक्स बिल्कुल सिमिलर नेचर का है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे आपकी इनकम के हिसाब से आप टैक्सेस पे करते हैं. लगान का इनकम से कोई लेना देना होता नहीं था. दैट वाज अ फिक्स सम. सो दिस समहाउ एक सोशल जस्टिस भी क्रिएट करता है. जो जितना ज्यादा कमा रहा है उतना ही ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स पे करेगा. सो इट्स सम सॉर्ट ऑफ सोशल जस्टिस आल्सो व्हिच इज बीइंग ब्रॉट बाय टैक्स. एक और कारण होता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इसलिए भी हम टैक्सेस पिक्चर में लेके आते हैं. सो वन रीजन इज इकोनॉमी, अनदर रीजन इज सोशल जस्टिस, राइट. इकोनॉमी में जब पैसा घूमता है, लोग टैक्सेस सरकार को पे करते हैं, सरकार उससे खर्चा करती है, तो एक तरह से वो पैसा वापस हमारी ही जेब में जाता है. कैसे जाता है हमारी जेब में? सो लेट्स सपोज आई एम द गवर्नमेंट, यू ऑल आर माय टैक्स पेयर्स. आप सबसे मैं टैक्स लेती हूँ, मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया, आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ हाईवे. अब आई एम जस्ट प्लानिंग कि मैं ये 200 किलोमीटर रेंज का हाईवे बनाती हूँ और उसमें मैं अपने से ही एक की कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूँ. ये कंपनी आती है, हाईवे बनाती है और मैं हाईवे बनाने के बदले इस कंपनी को पैसा देती हूँ. ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देती है. ये एम्प्लॉइज फिर कुछ सामान खरीदने के लिए किसी और शॉपकीपर को पैसा देते हैं. यानी यही पैसा जो मैंने टैक्स की तरह वसूला था वो घूम गया पूरी इकोनॉमी में. दिस इज हाउ इकोनॉमी ग्रोज विद टैक्सेस. बट इट डजंट मीन कि आप टैक्सेस एक्सेसिवली बढ़ा देंगे ताकि वो बहुत ज्यादा पैसा घूमे मार्केट में. ऐसा नहीं होता. आपको रीजनेबल भी रखना होता है. एक डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट भी पिक्चर में आता है जहां पे टैक्स पेयर के पास खर्च करने के लिए भी कुछ इनकम होनी बहुत एसेंशियल होती है. एंड सोशल जस्टिस, इट्स क्लियरली रिलेटेड विद जो जितना कमाए उतना ज्यादा टैक्स पे कर दे. सिंपल. आगे बढ़ते. टैक्सेशन स्ट्रक्चर. तो टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स ये इंडिया में भी काफी हद तक ऐसे है, लेकिन ये टिपिकली अभी तो यूके की बात हो रही है. वहां पे एक टाइप का टैक्सेशन होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जहां पे इनकम बढ़ती जाती है तो टैक्स का प्रोपोर्शन भी बढ़ता जाता है. जैसे if you are earning till let's suppose 50,000 pounds, आपकी टैक्स रेट 20% है. अगर 1 लाख पाउंड तक कमाते हैं तो आपकी टैक्स रेट 40% हो जाती है. आप 1 लाख से भी ऊपर, 2 लाख से भी ऊपर कमाते हैं तो आपकी टैक्स रेट 45% हो जाती है. दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. व्हेन इनकम राइजेस द प्रोपोर्शन ऑफ दिस टैक्स आल्सो राइजेस. दैट्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है रिग्रेसिव टैक्सेशन. रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है जब इनकम बढ़ती जाती है तो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स फॉल होता जाता है. ये कैसे हो सकता है? इसको लेते हैं फ्यूल टैक्स. लेट्स अज्यूम देयर इज अ टैक्स फ्यूल टैक्स. लेट्स सपोज आई एम वेरी गरीब आदमी, आई एम अर्निंग ओनली 1000 पाउंड्स. 1000 पाउंड में से मैं जितना भी पेट्रोल डलवाती हूँ उसमें से मेरा 50 पाउंड्स का फ्यूल टैक्स चला जाता है. मैं हो गई बड़ी हस्ती. ओवर 1 ईयर नाउ आई एम अर्निंग 50,000 पाउंड्स. लेकिन मेरी बड़ी हस्ती होने से मैंने पेट्रोल कंजम्पशन तो नहीं बढ़ा दिया ना. पेट्रोल कंजम्पशन इज द सेम. अभी भी मैं फ्यूल टैक्स कितना पे कर रही हूँ? 50 पाउंड्स. दैट मींस विद द इंक्रीज इन माय इनकम द प्रोपोर्शन ऑफ फ्यूल टैक्स दैट गोज डाउन. दैट्स रिग्रेसिव टैक्सेशन. मेरी इनकम बढ़ती जाएगी और वो जो टैक्स था उसका प्रोपोर्शन कम होता चला जाएगा. एनी कंफ्यूजन विद दीज टू? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके. Guys, just keep me in confidence कि तुम लोग छोड़ के चले नहीं गए हो क्लास को. Okay. Then comes proportional taxation. Now, what is this proportional taxation? Whatever is your income, हम तो इतना ही टैक्स लेंगे. इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन. लेट्स सपोज आपको 10% देना है एक पर्टिकुलर अमाउंट का. आपकी इनकम कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. आपके खर्चे पे 10% आप टैक्स पे कर दो. दैट्स प्रोपोर्शनल टैक्सेशन. As income rises, the proportion of tax remains constant. एक और इसका एक केस लेते हैं. Okay. किसी गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमें आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा है कि कम है, आप कुछ भी कमाइए.
10% इज योर टैक्स रेट। आज मैं 1000 पाउंड कमाती हूँ तो भी 10% टैक्स पे करती हूँ, मैं 20,000 पाउंड कमाती हूँ तो भी 10% ही टैक्स पे करती हूँ, मैं 1 लाख पाउंड कमाती हूँ तो भी 10% टैक्स ही पे करती हूँ। दैट्स प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स, मैं अपनी इनकम में से कितना परसेंट टैक्स दे रही हूँ, दैट्स द सेम एट ऑल लेवल्स, दैट्स प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। ये यूजुअली आपको दिखता नहीं है ज्यादा। लास्ट वन, ये यूके में और हमारे में दोनों में सेम है, एड वैलोरम प्रिंसिपल। वैट, वैल्यू ऑफ सामान के ऊपर दिया जाने वाला टैक्स, वैट। इसके ऊपर जब आपको ये नोट अभी शेयर होंगे क्लास के बाद में, क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपसे आज की शेयर होगी, इवन इफ यू जॉइन अस और यू डू नॉट जॉइन अस, ये वाला ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर यू। व्हाई दुबई हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स वैट, इनको 3-4 साल ही हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट सबसे ज्यादा ACCA प्लेसमेंट्स ऑन टैक्स प्रोफाइल आर कमिंग फ्रॉम दुबई। दुबई में बहुत सारी वैकेंसीज है वैट प्रोफाइल के लिए फॉर ACCs. So this is something which is very important. Dubai is struggling with the new law, with the new tax coming into place, and they need professionals who can handle that. Yes, Indian chartered accountants are also working there, but the best part is Indian chartered accountants के पास यहाँ बहुत जगह है। ACCs को abroad जो भी chances मिलते हैं, वो first place पे ACCs को offer भी किए जाते हैं, and they accept also because they are groomed in a way कि आप global accountants हैं, तो आप अपने आप को एक country में restrict मत रखिए। With that, more ACCs are now in UAE, right? So ये VAT वही है, इंडिया में भी VAT होता है, यूके में भी VAT होता है, रूल जरूर थोड़े से अलग है। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस एग्जैक्ट यूके के उस टैक्स सिस्टम पे जो हमारे टैक्स सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पे टैक्स की अथॉरिटी कौन है? कैन एनीवन नेम मी हु इज द टैक्स अथॉरिटी इन इंडिया? कौन है? ट्राई करो। I am pure vegetarian, guys. I do not eat students. यदि वर्क करती तो वर्चुअली तो I cannot do that any which ways also. क्यों भाई? Is that everybody is having breakfast and not able to speak up? Income tax department, CBDT, income tax department, these are all income tax authorities in India, right? Simple सा income tax department, CBDT. लेकिन ऐसा ही कोई डिपार्टमेंट यूके में भी तो होगा, वो है HMRC। HMRC, इसको लर्न कर लो, जगह जगह अक्रॉस द सिलेबस यू विल हैव टू यूज दिस वर्ड, HMRC. This is the authority which frames rules, tax rules. This is the authority which ensures that the rules put in place are actually applied by people. लोग सच में उन रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक से अप्लाई कर रहे हैं, ये HMRC का रोल है। HMRC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HMRC is Her Majesty's Revenue and Customs. क्वीन के हिसाब से चलता था ये, so this is Her Majesty's Revenue and Customs. HMRC बिल्कुल इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। जहां सर्च करनी होगी HMRC करेगी, जहां कोई लॉ पास करना होगा HMRC करेगी, जहां पे कोई भी पेनल्टी लगानी होगी HMRC करेगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स कौन देखेगा? HMRC देखेगी। तो ध्यान रखना, the most important system with UK tax is HMRC. This is the main body which controls all the companies, individuals and taxpayers. अब आते हैं इनके types of taxes पे। पहला टैक्स इनका इनकम टैक्स। टैक्स का कॉन्सेप्ट में सीधा ये समझना, आप जो भी कमाते हैं उसका अल्टीमेट गवर्नमेंट सोचती है कि थोड़ा सा हिस्सा आप हमें भी दीजिए। इनकम टैक्स इज सिंपल, इनकम पे आने वाला टैक्स। दूसरा, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये मैं बताऊंगी अभी क्या है, आएंगे इसकी डिटेल पे। देन देयर इज कैपिटल गेन टैक्स, देन इनहेरिटेंस टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस वैट। ये 3 तरह के टैक्सेस हैं, यही 6 आपके पूरे सिलेबस पे डिस्कस्ड है। इवन इन योर एडवांस लेवल आपको यही डिस्कस मिलेंगे मेजरली, एक्सेप्ट फॉर 2-3 एक्स्ट्रा जिसमें ट्रस्ट की भी बात होती है एडवांस टैक्स लेवल पे। लेकिन यहाँ पे मेजरली ये 6 टैक्सेस ही आपके पूरे 25 चैप्टर्स में डिस्कस्ड है। अब एक एक पे बात करते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है?
जो मेरे जैसे आम इंसान की इनकम पे लगता है। इंडिविजुअल्स, जहां से जो कमाओगे इनकम टैक्स पे करोगे। दूसरा, एनआईसीज। एनआईसीज इंडिया के सिस्टम से थोड़े से अलग है। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन होता है यूके में। यूके में इंश्योरेंस लेना इज मस्ट। तो ये जो आपके पास यहाँ पे जो एनआईसीज दिख रहा है, एनआईसीज का यहाँ पे एक अलग ही चैप्टर है। इस चैप्टर में एनआईसी के बारे में सीधा सीधा ये आता है कि दो कैटेगरीज में एनआईसी पिक्चर में आती है। एक जो इंडिविजुअल पे करता है, दूसरा एक जो एम्प्लॉयर यानी जो बिजनेस में है, किसी तरह की ट्रेडिंग में है, किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग में है, वो पे करता है। तो एनआईसीज आर फॉर पीपल हु आर either employed, for number two, for people who are self employed या फिर जो बिजनेस चलाते हैं। तो एनआईसी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐसे दोनों केसेस में इंडिविजुअल्स को पे करना होता है। कैपिटल गेन टैक्स ये इंडिया में भी है, जिसको हम सीजीटी बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स। ये इंडिया में बहुत खतरनाक है। बच्चन ने अपना एक बंगलो बेचा। वो बंगलो उसने खरीदा था जब वो बहुत जवान थे। he bought that bungalow at some 10 लाख रुपीस का अमाउंट, और आज वो मुंबई वर्ली में है। तो he sold that bungalow for approximately 50 करोड़। ये सब मैं स्टोरी सुना रही हूँ गाइस, जाके विकिपीडिया पे फैक्ट्स चेक मत करने लगना, दिस इज अ स्टोरी। 40 करोड़ का उन्होंने वो बंगलो बेच दिया। डिपार्टमेंट बोलता है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन, आपने ये बंगलो 1 लाख रुपए में खरीदा था और आज 40 करोड़ में बेच रहे हैं। ये जितना भी गैप है ना, ये आपका फायदा है। फायदे में थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दीजिए, मिल बांट के खाएंगे। सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे भी यही हो रहा है। सबका साथ सबका विकास है। आपका विकास हुआ, थोड़ा सम्मान भी तो होने दीजिए, हम थोड़ा सा देश का भी करेंगे। तो अमिताभ बच्चन साहब घबरा गए। शिट, मतलब 40 करोड़ में से 1 लाख हटा के सारे टैक्स लगा देंगे। जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी आज मैं 40 करोड़ की बेच रहा हूँ। ये तो मैंने माइनस करो ना, उसके ऊपर अगर मैंने किसी चीज पे बेचा है तो हाँ वो मेरा फायदा है। लॉजिकल बात है ना। इसलिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए भी सरकार ने कुछ रूल्स डाले। इंडेक्सेशन का रूल डाला कि आपने जब से खरीदा और आज जिस दिन बेचा, अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन से या रिटेल प्राइस इंडेक्स से इसकी वैल्यू बढ़ती तो कितनी बढ़ती। तो अमिताभ बच्चन साहब ने एक सीए साहब को अपॉइंट किया और कैलकुलेट करवाया कि जो फ्लैट उन्होंने 40 करोड़ का बेचा, उसकी आज इंडेक्सेशन से वैल्यू 30 करोड़ की होती। यानी अब टैक्स कितने पे पे करना पड़ेगा, सिर्फ 10 करोड़ पे, पूरा इतने बड़े अमाउंट पे नहीं। एंड दिस इज वेयर द नीड ऑफ कैपिटल गेन अराइज्ड। ये यूके में भी होता है, लेकिन यूके के थोड़े से रूल्स अलग है। बट वो रूल्स भी इसी बात से लिंक्ड है कहीं ना कहीं कि आपने अगर एसेट बहुत पहले खरीदा है, उसको आज की वैल्यू पे लेके आए और फिर देखिए वैल्यू ऑफ एसेट को आपने कितने में बेच दिया। दिस गैप इज योर फायदा। एचएमआरसी इस पे आ जाएगी कि लाओ भैया टैक्स दे दो, तो ठीक है दे देंगे, एटलीस्ट पूरे पे तो नहीं देंगे। तो अमिताभ बच्चन साहब ने जो बात सीखी वो आप यहाँ पे सीखेंगे। और जब आप टैक्स कंसल्टेंसी चालू करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स कंपनीज भी एलिजिबल होती हैं इसके लिए, और इंडिविजुअल्स भी होते हैं। यानी पैसे कमाने के लिए क्लाइंट दो होंगे, इंडिविजुअल भी होगा और कंपनी भी होगी। इसका एम्बिट बहुत बड़ा है। और आपके F6 में एंड इवन एडवांस टैक्स में, दोनों में ही कैपिटल गेन टैक्स इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड, राइट। इनहेरिटेंस टैक्स आते हैं। नाउ somebody dies, रियल एग्जांपल देती हूँ। राजेश खन्ना डाइड। राजेश खन्ना की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उनकी वाइफ को जाएगी पहले। जब वाइफ की डेथ हो जाएगी, डिम्पल कपाड़िया की डेथ हो जाएगी, तो उनकी बेटियों को जाएगी। जब प्रॉपर्टी ऐसी जनरेशन दर जनरेशन पास होती है, उसको इनहेरिटेंस टैक्स के अंडर लाया जाता है। बट द बेस्ट पार्ट इज इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता, यूके में लगता है।
जब किसी इंडिविजुअल को पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलती है तो इनहेरिटेंस टैक्स उसको देना पड़ता है। द बेस्ट पार्ट इज इनहेरिटेंस टैक्स में से कम हर बार पेपर में 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये इजी भी बहुत है। इसमें बहुत सारे क्लॉजेस नहीं है, मोटे मोटे 5-6 ही हैं और वो ही अप्लाई होते रहते हैं क्वेश्चंस में। दैट्स द बेस्ट पार्ट विद आईएसटी, राइट। कॉर्पोरेशन टैक्स पे आते हैं। इंडिया में हम बोलते हैं कंपनी, यूके में कंपनी इज कॉर्पोरेशन और उन पे लगने वाला टैक्स इज कॉर्पोरेशन टैक्स। द बेस्ट पार्ट इज अगर इंडिविजुअल का बिजनेस समझ लेते हैं तो यूके का कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत इजी हो जाता है। अगर आप इंडिविजुअल्स का कैपिटल गेन टैक्स समझ लेते हैं तो यूके की कंपनीज का कैपिटल गेन समझना बहुत इजी हो जाता है। So corporation tax becomes very easy. The only troubling part is individual, क्योंकि इंडिविजुअल की चीजें इतनी उलझी हुई होती हैं कि आप एंड ही नहीं लगा पाएंगे कि यार इंडिविजुअल को कहां कहां से इनकम आ रही है। That becomes too complicated. That किसी भी चीज की खरीद सेल पे जो भी टैक्स पे होता है वो वैट होता है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये तो चीज ही अलग है। We'll discuss it separately. I'll not confuse you in a lot of things currently. डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। सी मेरी आदत है थोड़ी सी, मेरी पीपीटीज आपको ऐसी दिखेंगी, टिल एंड तक ऐसी दिखेंगी, बिकॉज एक तो पेपर ऐसा है उसमें अगर मैं बहुत ज्यादा बिना फोटोज के इफ आई ट्राई डूइंग द पीपीटीज तो यू ऑल विल स्लीप इन द क्लास। रिकॉर्डिंग चालू करके क्लास चालू करके यू ऑल विल गो ऑफ, so bear with that. So direct versus indirect tax is simply जब टैक्स पेयर डायरेक्टली एचएमआरसी को टैक्स दे वो डायरेक्ट टैक्स है। और इंडिया में जब टैक्स पेयर डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दे दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जब टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में कोई इंटरमीडिएरी आ जाए उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा कैसे हो सकता है? वैट के केस में हो सकता है। वैट के केस में कैसे? आपने एक शॉपिंग करी मिंत्रा से, जूते खरीदे और जूतों पे वैट पे किया तो मिंत्रा को पे किया ना। मिंत्रा इज नॉट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एचएमआरसी। नाउ मिंत्रा विल हैव टू पे दैट टैक्स व्हिच हैज कलेक्टेड फ्रॉम द बायर टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी एचएमआरसी को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिंत्रा पे करेगा वो वाला टैक्स जो उसने कस्टमर से इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है। तो इनडायरेक्ट चैनल हो गया, दैट्स इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली टैक्स पेयर और इनकम टैक्स पेयर के बीच का नहीं होता। देयर इज एन इंटरमीडिएरी इन बिटवीन। ठीक है, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? इज इट ऑल क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ टैक्स लॉ। अब ये पोर्शन कुछ ऐसा है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगी, 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं सेक्शन ए के। ये 3 जगह है जहां से टैक्स लॉ बनता है। पहला स्टैट्यूट लॉ, यानी कि ये वो वाला है जो फाइनेंस एक्ट में हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं। ये मैंडेटरी होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2020, दैट्स स्टैट्यूट लॉ। दूसरा केस लॉ। अभी केस लॉ क्या होते हैं? तो व्हेन आई वाज वर्किंग विद ईवाई मेरा ज्यादा रोल इनसे टकराता था। स्टैट्यूट लॉ तो पढ़ना था ही था, केस लॉज भी स्टडी करने होते थे। ये केस लॉज क्या होते हैं? लेट्स सपोज एक छोटा सा मैटर है, उस मैटर पे लॉ के इंटरप्रिटेशंस यानी मतलब कई तरह से निकाले जा सकते हैं। ऐसे में अगर कोर्ट ने कभी किसी सिमिलर केस में कोई जजमेंट दिया है तो मेरे लिए भी वो जजमेंट एप्लीकेबल होगा। सिंपल, दैट्स केस लॉ। इफ इन अ पर्टिकुलर मैटर सिमिलर टू माय मैटर कभी भी कोई जजमेंट दिया है वो जजमेंट मुझ पे भी अप्लाई होगा, दैट्स केस लॉ। ये भी बाइंडिंग होते हैं और ये काफी गाइडेंस देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे I will touch a very sensitive issue here. There was a movie Pink. If you have not seen that, just read a brief about that movie. It was on the molestation being done by some boys on some girls. Clearly, law ने उसके बाद में एक चीज बोली थी, and that movie is also based on one statement coming from the law. Even if somebody is your wife,
No means no. That was the main belief behind that movie. That means कई बार कई चीजों को एम्बिट में लाने के लिए जजमेंट्स बाइंडिंग हो जाते हैं. दूसरा एक केस लेते हैं, डाउरी के केस में विमेन सेल, उन्होंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जहां पे गर्ल्स और लेडीज वर इन अ रॉन्ग वे झूठे केसेस फाइल कर रहे थे, तो कोर्ट को बोलना पड़ा. If anything like this happens, in that case, the female is going to face a punishment which ideally would have been given to the man. For example, ऐसा कुछ केस आया. Although the judgment is very long, उसके कुछ clauses अलग-अलग है. But अगर मैं layman terms में आपको समझाऊं कि अगर कोई भी झूठा केस हुआ, तो जो punishment आप उस मेल मेंबर के लिए मांग रहे थे, वही आप पे भी अप्लाई होंगे. If that is a case law, तो वो हर केस पे लगेंगे. हर केस पे, भले वो लॉ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर किसी कोर्ट ने ये बोल दिया तो वो सब पे बाइंडिंग होगा. दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ केस लॉ. और इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी ऑफ केस लॉ इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इनकम टैक्स मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और यूके के कोर्ट्स भी इसी तरह लैडर्स पे चलते हैं. एंड देयर मेजर कोर्ट, इफ इट डिसाइड समथिंग, इट इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन. ठीक है. तीसरा लेते हैं एचएमआरसी गाइडेंस. तो एचएमआरसी भी कई बार गाइडेंस देती है, कई तरह से गाइडेंस देती है कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन को आप ऐसे इंटरप्रेट करिए. ये गाइडेंस कई टाइप्स की होती है. ये 5 टाइप्स की होती है. वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस, जहां पे क्लियरली एचएमआरसी ये बताएगा कि ये काम ऐसे होता है. दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस. नंबर 2, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेशंस, जहां पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर को कुछ एक्स्ट्रा कंसेशन दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है. जैसे इंडिया में आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, वो एक तरह का स्टैट्यूटरी कंसेशन है कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स कंसेशंस मिलेंगे. हॉस्पिटल आप सेटअप करते हैं तो वो जमीन आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिलेगी. दीज आर कंसेशंस. थर्ड वन इज इंटरनल एचएमआरसी मैनुअल्स, जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के लिए होती है. ये एम्प्लॉइज है और वो देख पाएंगे कि भाई यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं ये प्रोविजन क्या बोल रहा है. ये एचएमआरसी के मैनुअल्स उसको क्लियर कर देंगे कि ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू इंटरप्रेट दिस. ठीक है. देन एचएमआरसी की वेबसाइट, लीफलेट्स, बुकलेट्स, ये सारी चीजें भी लॉ को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है. एंड देन डिटेल्ड टेक्निकल गाइडेंस. तो अगर आप टैक्स एडवाइजर बनते हैं या टैक्स एजेंट बनते हैं, आपके लिए लास्ट वाला बॉक्स पिक्चर में आएगा, डिटेल्ड टेक्निकल गाइडेंस. ये आपको अगर गूगल पे सर्च आउट करोगे तो कमेंट्रीज के नाम से मिलेगा. किसी भी टैक्स प्रोविजन के ऊपर कमेंट्रीज आती है, ये उसी के बारे में बात कर रहा है. कमेंट्रीज और टेक्निकल गाइडेंस ये बहुत टेक्निकल होते हैं, और ये उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो टेक्निकल लैंग्वेज समझ सकते हैं, यानी टैक्स एक्सपर्ट्स के लिए होते हैं. ये क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इसमें से ये पूछ लेता है कि एचएमआरसी गाइडेंस के अंदर क्या 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 आता है. एक टैक्स लॉ बनने के लिए क्या मेजर सोर्सेज होते हैं, मतलब मेजर वो वर्ड्स पूछता है. 2 मार्कर क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट. दिस जस्ट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि किस में हम क्या आइटम लेते हैं. एनी प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड? एनी प्रॉब्लम? No, ma'am, understood. ओके. अब आते हैं डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स पे. सो दिस इज समथिंग जो ग्लोबलाइजेशन के साथ आया. वी आर वर्किंग अक्रॉस ग्लोब्स. हम अब एक कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे देशों में ट्रैवल भी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं. So let's take a small example here. This is a businessman. He earns money in country A. और कंट्री ए ने ये बोला कि क्योंकि आपकी कमाई हमारे देश से हुई है, हमें 20% टैक्स पे करिए. पे करना पड़ेगा, बिल्कुल. An income which arises in a particular country, you have to pay taxes there. लेकिन ये बंदा था कंट्री बी का. अब कंट्री बी का क्योंकि वहां पे रेजिडेंट था, कंट्री बी बोलेगी क्योंकि आप हमारे रेजिडेंट हैं, कहीं से भी कुछ भी कमाइए, हमारे यहाँ पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा. सो दिस इज एन इमोशनल ब्लैकमेल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज. कंट्री ए सेज, अरे यार हमसे पैसे कमा के जा रहे हो तो हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दो. बिल्कुल सही बात है. कंट्री बी बोलेगी, यार तुम हमारे नागरिक हो, हमारे रेजिडेंट हो, यू आर नॉट एन एनआरआई,
हमारे देश की तरक्की में तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए। तो इस बेचारे के साथ क्या हुआ, उसी इनकम पे 50% टैक्स पे कर दिया इसने। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने बिजनेसेस, इंटर कंट्री बिजनेसेस करने बंद कर दिए। उसका नतीजा ये निकला कि इन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने, जैसे हमारे मोदी जी अलग अलग देशों में घूमते हैं, क्या करने के लिए घूमते होंगे, ये करने के लिए घूमते हैं, ट्रेड प्रमोट करना। तो ट्रेड प्रमोट करना कैसे होता है, इनवाइट कर देना, आइए आप हमारे देश में बिजनेस करिए, प्लीज मेक इन इंडिया, प्लीज कम एंड डू बिजनेस इन इंडिया, दैट्स इट। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके मीटिंग करते हैं? नो। सामने वाला प्राइम मिनिस्टर बोलता है कर तो लेंगे जी, टैक्स का क्या करेंगे, आप तो हमसे टैक्स मांगेंगे अपनी रेट पे, हमारे यहाँ पे भी टैक्सेस है, तो हमारा बंदा क्यों आएगा आपके पास बिजनेस सेटअप करने, वो यहीं से कर लेगा। तो मोदी जी ये बोलते हैं नहीं, हम एक काम करते हैं, हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये एग्रीमेंट क्या बोलता है, अगर इस बिजनेसमैन ने कंट्री ए में 20% टैक्स दे दिया, तो जो दूसरी कंट्री है वो 30% नहीं लेगी, 10% टैक्स ही लेगी, एक्स्ट्रा 10% ही लेगी। इनको मनाना मोदी जी के हाथ में कि आप 10% ही रखिए, हम तो हमारे पूरे 20% रखेंगे। दैट्स फेयर आल्सो, कमाई का सोर्स कंट्री ए है, कंट्री बी नहीं है, लेकिन कंट्री बी अपने रेजिडेंट पे डबल बर्डन ना डाले, इसलिए सिर्फ एक्स्ट्रा वाला ही ले ले। दिस इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इनको टैक्स ट्रीटीज भी बोलते हैं। और इन्हीं ट्रीटीज के ऊपर आप बहुत आसानी से बिजनेस करते हैं, जैसे हम स्विट्जरलैंड में बिजनेस करते हैं। स्विट्जरलैंड में एब्सोल्युटली जीरो टैक्सेशन का केस है कि अगर आप इंडिया में पे करके आए हो तो यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। मॉरिशस, we are under very good tax relations and avoidance treaties with a number of countries, जहाँ पे हमारा बिजनेस इसीलिए बहुत इजीली होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मैम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपके लिए एज अ प्रोफेशनल समझना मैम बहुत जरूरी है। यस प्लीज। मैम सो दिस इज गोइंग टू हैपन बाय चॉइस, यस, कुछ मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे ऐसे। usually any individual takes the benefit of the treaty. Why will he end up paying tax की 20% कंट्री ए में दूं और 30% बी में दूं? या राइट, वो लेगा ही फायदा कि मैं 10% ही दूं। अपने कंट्री में अगर आप कंट्री बी में कमाते 30% भी देते ना, राइट राइट राइट, तो यहाँ पे मैं ज्यादा क्यों दूं? वो अपने आप ही इस ट्रीटी का फायदा उठाएगा। दूसरा, जिस दूसरे देश के साथ अगर आपकी ट्रीटी नहीं है, वहां पे आपको बिजनेसेस भी कम होते दिखेंगे, वहां लोग बिजनेसेस नहीं करते। ऐसे केस में आपकी जो ग्लोबल फ्रेंडशिप्स है वो बहुत मैटर करती है इन्हीं ट्रीटीज की वजह से, कि कौन किसके लिए क्या छोड़ेगा। अभी वो एक दूसरे के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं। बाय चाइना, जापान, दे हैव एन नंबर ऑफ कंपनीज जो ग्लोबली उनके साथ काम करना चाहती है, इनकी कंफर्टेबल ट्रीटीज की वजह से। अब इंडिया में भी हो रहा है, हम बहुत लिबरल हो रहे हैं हमारी ट्रीटीज में, ठीक है, दैट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन। ठीक है, ओके मैम। अब आते हैं टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन पे। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। दोनों टर्म्स बड़ी लगती है, टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है। बात एक ही तो है, टैक्स बचाना, पर बात एक नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टोरी बिल्ड करती हूँ। क्या किया, बिजनेस चलाते हैं, अपने कस्टमर्स को पक्का बिल नहीं देते, कच्चा बिल देते हैं। देखा है हमने इंडिया में बहुत सारा कागज भी लिखा हुआ दे देते हैं, दैट्स अ कच्चा बिल। ये कच्चा बिल देने से फायदा क्या होता है, कच्चा बिल देने से सरकार को पता ही नहीं चलता कि आपकी इनकम हुई कितनी है, क्योंकि आपका सेल्स फिगर तो पता ही नहीं चल रहा, वो तो पक्की वाली बिल बुक से पता चलेगा। गोल्ड में भी ये बहुत ज्यादा होता है, जब पता ही नहीं चलेगा सरकार को कि एग्जैक्टली आपका रेवेन्यू हुआ कितना है, सरकार टैक्स लगाएगी किस पे? ये गोल्ड में होता है, इसीलिए ऐसा कहते हैं कि काला धन जमा होता है। नाउ दिस इज काला धन विच इज अनडिक्लेयर्ड, नॉट डिक्लेयर्ड टू द पब्लिक। तो यूजुअली आप लोग ये भी, जैसे अब वेरेवर यू ज्वाइन इन एनी ऑफ द लर्निंग पार्टनर्स या फिर एसीसी होती है, फीस ऑनलाइन पे होती है, उसका रिकॉर्ड है कि ये फीस पे हुई है। आप किसी भी लर्निंग पार्टनर को दीजिए, किसी भी रेस्टोरेंट में दीजिए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होना या बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट होना मेक्स इट अ लीगल चैनल।
लेकिन कैश में पेमेंट करना उसका कोई प्रूफ नहीं होता अनटिल अनलेस किसी पक्की पर्ची पे साइन ऑफ ना किया जाए। ऐसे में अगर आप टैक्स बचाते हैं तो उसको टैक्स अवॉइडेंस नहीं, टैक्स इवेजन कहा जाता है, जहां पे आप अपनी इनकम को छुपाते हैं टैक्स बचाने के लिए। दिस मेक्स दिस इलीगल, ये इलीगल है। और सर्च करने पर अगर डिपार्टमेंट उतर के आ गया तो हैवी पेनल्टी लगाता है इंक्लूडिंग जेल। आते टैक्स अवॉइडेंस पे। टैक्स अवॉइडेंस बिल्कुल लीगल काम है। कैसे? मैं भी करती हूँ, आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, अपने फादर से बात करना कि वो टैक्स कैसे बचाते हैं। अगर आपके फादर सैलरीड होंगे, कहीं जॉब करते होंगे, तो एचआरए पूछना उनसे, व्हाट इज दिस एचआरए, समझना ये क्या होता है। एचआरए इज टैक्स अवॉइडेंस का एक प्रोविजन जहां पे आप टैक्स बचा सकते हैं। एक एलटीए हुआ करता था पहले तक, लेकिन पेंडेमिक के बाद में बिकॉज लोग घूमने फिरने नहीं गए तो सरकार ने ये बोला कि एलटीए की जगह पे अगर आपने इस पूरे साल में कोई भी कैपिटल असेट परचेज किया, हम उसका भी डिडक्शन आपको दे देंगे एलटीए के अंडर। अब अगर उसका मैं फायदा उठाऊं तो मेरे लिए तो ये टैक्स अवॉइडेंस हो गया। लेट्स सपोज मैंने एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा था, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए उसमें, तो मैं एलटीए के अंडर उसको 20,000 को ले लूंगी। माय चिल्ड्रन दे स्टडी इन स्कूल्स, उनकी ट्यूशन फीस भी हम क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम को कम करने के लिए। सो इफ आई अर्न 100 रुपीज एंड आई पे 10 रुपीज की ट्यूशन फीस फॉर देयर स्कूल, 90 पे मैं टैक्स पे करूंगी। ये 10 को क्लेम करना टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है, यानी टैक्स के ही रूल्स को यूज करके टैक्स बचाना, वो टैक्स अवॉइडेंस है। इसलिए इसका ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये बोलेगा, एक केस बताएगा कि इस केस में एक इंडिविजुअल था, उसने अपनी इनकम डिक्लेयर ही नहीं करी एंड ही सेव टैक्सेस। So do you categorize it as tax avoidance? True or false? Yes or no? Now that case you have to think कि ये टैक्स इवेजन है या टैक्स अवॉइडेंस है। और इसका क्लियर कट एक ही तरीका है, अगर आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी की है, इंफॉर्मेशन सप्रेस की है, या फिर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पता होनी चाहिए थी वो नहीं बताई है, दैट इज टैक्स इवेजन। Rest all things are tax avoidance। बाकी जो टैक्स प्लानिंग होती है वो टैक्स अवॉइडेंस होती है। ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. चलो, क्या अप्लाई होता है? प्रोफेशनल एंड एथिकल गाइडेंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये किसी सीए पे नहीं, एसीसीए पे अप्लाई होता है। ओपिक, इसको लर्न करना 2 मार्कर्स में आ जाता है ये भी। ओपिक मॉडल है, ये एसबीएल तक भी आता है और ये एडवांस लेवल तक सब जगह आपसे पूछा जाएगा। इसका हर एक लेटर एक एसीसीए के लिए कुछ प्रोफेशनल कंडक्ट की बात करता है। O stands for objectivity, P stands for professional competence and due care, another P stands for professional behavior, then integrity and C confidentiality। यानी एक एसीसीए को जो टैक्स एडवाइजरी में है या कोई भी काम कर रहा है, उसको ये ओपिक प्रिंसिपल याद रहने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? जब भी काम करें फ्री फ्रॉम बायस होके काम करें, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिविटी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर, जो आप काम कर रहे हैं उसको करने के लिए आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए। तो आई से आई एम टीचिंग, आई एम कॉम्पिटेंट टू डू दैट। बट इफ यू से मैम आप एक बेड बना दो कारपेंटर के तरह, सॉरी, नो कॉम्पिटेंस। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हर किसी के लिए हर काम नहीं है। आप जो काम करें उसके लिए आप पूरी सावधानी भी रखें और आप में कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। दैट्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर, राइट? देन प्रोफेशनल बिहेवियर, आपका बिहेवियर भी प्रोफेशनल होना चाहिए। नाउ लेट्स सपोज अभी निकिता ने प्रॉब्लम पूछी थी, अगर उसको मैं ऐसे रिएक्ट करूं, और ये क्या बात हुई, ये क्या तरीका था पूछने का, और वही ऐसा है, इज इट प्रोफेशनल बिहेवियर? नो। So that's a precondition which comes with all the professions। एक डॉक्टर में वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, ओथ है ये हम लोगों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। एसीसी सीएस की ये सिमिलर है, ये ओपिक मॉडल आपके लिए आता है जो हमारे लिए बहुत ही लंबा होता है और भी लंबा होता है। So any which way you should have a professional behavior even when you are fighting in your personal relationship, professionally fight करना, right? Then integrity, अब ये integrity में क्या आता है?
ईमानदारी। कैसे ईमानदारी? लेट्स सपोज आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट पूछता है, यार मेरे पास ये नोटिस आया है, सर बोलो क्या करें? आप उसको क्या सलाह देंगे? एक इंडिविजुअल होगा, वो बोलेगा ओ ये बाप रे, सर आप तो मुझे रेड होने वाली है, बोलो। One is misconduct. Now another professional. Relax. आपने कहीं भी अगर कोई गलती करी आप मुझे बताओ, उसको डिस्क्लोज करते हैं एंड लेट्स कीप एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, आज हम कोई गलत तरीके से कर लेंगे, आगे चल के पकड़े गए तो यहाँ तो पेनल्टी लगेगी लगेगी, जेल और हो जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंटेग्रिटी? केस 1 और केस 2? भाई सुन रहे हो या चले गए सब? Case 2. Case 2. So case 2 clearly showing that you need to act with full integrity. Like अपना बिजनेस बनाने के लिए please do not go and do that. हम डॉक्टर्स इस बारे में बहुत बोलते हैं हम इस बारे में कि यार एक चीज दिखाने जाते हैं and then they suddenly make you a very serious patient. और यार आपको तो ये भी हो रहा है, और यार आपको तो ये भी हो रहा है, और यार आपको तो ये भी हो रहा है. That is loss of integrity. Let's be fair to the client. कितने पैसे कमा लोगे एक क्लाइंट को बेवकूफ बना के? Rather I will say, कई लोग फोन करके पूछते हैं ये चीज कि मैम आप इसमें क्या सजेस्ट करते हो कि क्लाइंट से काम निकलवाना चाहिए क्या? एंड आई ऑलवेज टेल देम कि आपको सच में सक्सेसफुल अगर होना है, ईमानदारी से करो। वो चीज ऐसी है जो आपको रिप्लेस करने में बहुत दिक्कत क्रिएट करेगी। बहुत आसानी से लोग आपको रिप्लेस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ईमानदार होना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। जब पैसा आता दिखता है और उसको रोकना इज वेरी डिफिकल्ट। करके देखो, nobody in the world will be in a position to beat you. Remain your integrity with yourself. पैसे के पीछे do not just start digging up on your client's money कि चलो और निकालते no. Then confidentiality, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को किसी से शेयर ना करना। तो ये तो आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, जहां पे यूजुअली जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, दे डू नॉट शेयर इंफॉर्मेशन इवन विद देयर स्पाउसेस। दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। अगर नहीं देखी है तो एक मूवी देखना, रेड, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। सो इट वाज अ मूवी अबाउट एन इनकम टैक्स ऑफिसर। ही नेवर यूज्ड टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन विद हिज वाइफ कि नेक्स्ट डे वो कहां रेड करने जा रहे हैं, वो ये तक भी अपनी वाइफ से शेयर नहीं करते थे। इवन अपने स्टाफ को, अपनी टीम को भी तब बताते थे जब रेड के लिए निकलने में 15 मिनट रह जाते थे। दैट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। ना क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करनी है, वहां से क्या मिला है ये भी किसी से शेयर नहीं करना है, उसने आपको अपने क्या सीक्रेट्स बताए हैं वो भी शेयर नहीं करने हैं। दैट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये ऑपिक मॉडल को बस ऊपर ऊपर से लर्न करके रखना, इसमें प्रैक्टिकली कुछ आता नहीं है। डीलिंग विद एचएमआरसी पे आते हैं। क्लाइंट ने एक गड़बड़ कर दी, एक इरेगुलरिटी कर दी, टैक्स के पर्सपेक्टिव से कुछ गलती हो गई, तो देयर कैन बी अ केस कि आप क्लाइंट से डिस्कस करें और उनको समझाने की कोशिश करें कि इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दो, तो ठीक है। लेकिन ये तो केस वहां है जहां पे क्लाइंट ने इरेगुलरिटी कर दी, गलती हो जाए तो गलती के केस में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आता है अगर एक जेन्युइन एरर है तो आप क्या करेंगे, दूसरा अगर जानबूझ के किया गया एरर है तो आप क्या करेंगे। जहां पे नॉर्मल कोई चीज छूट गई है, टैक्स इरेगुलरिटी हो गई है, उसको जल्द से जल्द आप रिपोर्ट कर दीजिए डिपार्टमेंट को। जैसे हमारे केस में भी, इंडिया में भी हम इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, वो टैक्स इरेगुलरिटी हुई, लेकिन आपने कोई गलती कर दी। अगर गलती जेन्युइनली हुई है तब तो आप उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रॉडुलेंटली हुई है यानी जानबूझ के की गई है तो आप क्या करेंगे। अब उस केस में पूरा फ्लोचार्ट को समझना। एक गलती होती है जो एक जेन्युइन एरर है, तो आप सीधा सीधा क्लाइंट को ये बताइए कि हमें एचएमआरसी को ये चीज बता देनी चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई है, और अगर हमने ये नहीं किया तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। बताओ क्लाइंट को, उसको हो सकता है पता ही नहीं हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक्सप्लेन दैट टू हिम। नाउ देयर कैन बी अ केस, या तो क्लाइंट हाँ कर देगा तो एचएमआरसी को रिपोर्ट कर देना, क्लाइंट ने मना कर दिया, नहीं कोई जरूरत नहीं है एचएमआरसी को बताने की, ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। मेंबर, एसीसीए का कोड ऑफ एथिक्स ये बोलता है इसका नतीजा राइटिंग में देंगे, मतलब अपने क्लाइंट को अपने लेटर हेड पे लिख के देंगे कि ये ना करने की वजह से ये होगा।
और आप यहाँ तक भी कॉल ले सकते हैं कि क्लाइंट के लिए काम करना बंद कर दें। आपने ऐसा कर दिया, लेकिन क्लाइंट तो अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी बोल रहा है कि नहीं, आपको अपनी ईमानदारी अपनी जेब में रखने की जरूरत है, एंड यू आर नाउ ऑफेंडेड कि ये तो इज रॉन्ग। तो फाइनली आपके पास फिर एक ही चॉइस बचती है, स्टॉप वर्किंग फॉर दैट क्लाइंट, इन्फॉर्म कर दो। लेकिन आपको एचएमआरसी को ये इन्फॉर्म नहीं करना है कि आपने क्लाइंट को क्यों छोड़ा। मतलब इन्फॉर्म क्या करना है, दैट आई एम लीविंग दिस क्लाइंट, आई एम नो लॉन्गर अ टैक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एबीसी कंपनी। लेकिन इसमें रीजन नहीं देना है। आई कुड सी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 2 मार्कर्स, जो इसी पे आ रहे थे कि क्या आपको रीजन दे देना चाहिए एचएमआरसी को कि आप क्यों इस कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं देना है। क्यों नहीं देना? अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करनी है। So Ayushi, this becomes relevant for you also. You will also find some cases जहाँ पे आपको HMRC को रिपोर्ट करना पड़ेगा that I am no longer going to work with this company, and never ever you need to disclose the reason for that. ठीक है? Ayushi, are you there? चलो, ओके, ठीक है। तो आपको हमेशा से ये बताना होता है किसी भी क्लाइंट को छोड़ते हुए that you are leaving that client without telling the reason. HMR से अपने आप पता चलेगा, पता कर लेगा कि क्या कारण है यार ऐसा कि इसने सडनली इस क्लाइंट को छोड़ दिया। होने को पूरी इंक्वायरी फिर, why not, right? चैप्टर की, that is money laundering regulations. Money laundering regulations बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट फिर भी I have tried to keep it a bit इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी ये पेपर ऐसा है जो रोला डालता है। गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू अ वीडियो ऑन मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस। जस्ट अ सेकंड। सब यहीं पे है ना, सब कहीं चले गए हो? यस मैम है। Okay. Just a second, let me just open it up. पहले मुझे कंफर्म करना इफ यू आर एबल टू व्यू। ये दिख रहा है कुछ वॉशिंग मशीन सामने, कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. ठीक है, मुझे कंफर्म करना अगर आपको आवाज भी इसकी सुनाई दे रही है तो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। Money laundering provisions. Is this आवाज आई? यस मैम। सुनो, देखो ये क्या है। Yes, ma'am. money laundering? Obviously not. This is not money laundering. So let's just understand what money laundering means. Let's take a simple illustration. Let's take a simple case of an employee who happily enjoys his job, who happily works in his company and has been proving himself since years. But now suddenly he feels that he has to become rich as soon as possible. So rather than working diligently for the office and the benefit of the organization, he takes up a different route. That different route comes up in the form of a fraud. He tries to defalcate and steal the money of the company by using the passwords which only an employee can have. This makes him rich overnight. He starts accumulating a lot of money, a lot of assets with him, so that he can actually enjoy his life with his wife in a wonderful and experiential manner. But can this be avoided? Yes. In that case, the companies can always appoint an MLRO. He is a money laundering reporting officer. So the firms, they appoint an MLRO within the firm so that such sort of frauds can be regulated to some extent. Now, this officer actually looking into the transaction decides if any of the crimes or transactions must be reported to the National Crime Agency, that's the NCA. And now, when the NCA receives a report of any such irregularity happening in any of the firms, they can come up, raid the organization and try to dig out all the details of the transaction. In that case,
where a report is made, the client is not supposed to be informed, because in that case, it can lead to changing the evidences, tampering of evidences. And this is how money laundering regulations work in the UK. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल टॉपिक जो बुक में है, लेकिन इस तरह की आपको वीडियोस बहुत सारी मुझे देनी है, बिकॉज कंटेंट लर्न करने में इट बिकम्स इजी जब आप उसको देख लेते हैं. बट नाउ इफ आई से कि अब हम चैप्टर फर्स्ट में किस स्टेटस पे है, सो जस्ट अ सेकंड, चैप्टर 1 की यहाँ पे हो जाती है. बाय बाय. थैंक यू हो जाता है. गाइस अभी तो कुछ काम करो. Do I look so horrible that you are not even coming up and speaking up? मतलब चुप्पी को मैं क्या मानूं? नो मैम, ऐसा नहीं है. अच्छा ठीक है. अच्छा अब let's do one thing. I would like to take half an hour also, ताकि हम थोड़े सा और टेक्निकल कंटेंट पे बढ़ जाएं. Let's take a 10 minutes break and let's again get back so that हम 12 बजे तो एटलीस्ट 12 बजे तक we study, क्योंकि even if it is a trial class, आपको तब तक डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक कोई प्रैक्टिकल पोर्शन कवर नहीं हो. राइट? सो लेट्स टेक अ 10 minute break and get back again. Yes, ma'am. ओके मैम. Okay, we'll get back at 10:50 sharp. Yes. So everybody is back? आगे सब? Yes, ma'am. Sure, okay. अच्छा, I'll show you the book. एक बार इस चैप्टर के 2-3 क्वेश्चंस हैं, just try doing them. अभी कर लेते हैं. And you can write the answers in the chat box, या फिर unmute करके भी बोल सकते हो. That works fine both ways for me. I'll put up the screen in front of you. Please, हमने ये देखो, this was the table which I was referring to. That this is the table जो आपको एग्जाम में दी होगी. ठीक है, तो ये अभी आपको देख के समझ में नहीं आएगी, बिकॉज ये बीच बीच में सिलेबस एरियाज में से निकल के आ रहा है. दिस वे ये 3-4 पेजेस एग्जाम में होंगे, एटलीस्ट हम इनको लर्न नहीं करेंगे. सो यूके टैक्स सिस्टम, you all can see the book now. Yes. 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 So we did this social justice, progressive taxation, regressive taxation, proportional taxation, ad valorem जो VAT होता है, types of taxes, ये भी स्लाइड में थे. तो आइडियली आपको नोट्स जो मिलेंगे, वो नोट्स ये स्लाइड ही मिलेंगी जो मैंने कंसाइज में 100% चीजें उसमें डाली हुई हैं. उसमें चीजें आपको 1-2 छोड़ी हुई मिलेंगी जो बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें हैं. ठीक है, बाकी अदरवाइज मेजर पोर्शन एवरीथिंग इज कवर्ड देयर. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, देन स्ट्रक्चर, एचएमआरसी के बारे में देयर इज नथिंग यू नीड टू मग अप. सोर्सेज ऑफ टैक्स लॉ, ये भी पीपीटी में था. देन डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स, ये यूरोपियन यूनियन आई हैव स्किप्ड, क्योंकि जब ये आप वैट करेंगे उसमें आएगा. ये वैट से रिलेटेड है और यूरोपियन यूनियन का पूरा कंटेंट काफी बड़ा पोर्शन है. सो यहाँ पे उसको पढ़ के कंफ्यूज होने से बेटर है कि वहीं पे हम उसको डिटेल में ले लेंगे. देन टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन. ये यहाँ पे आपका ये ओपिक आ गया. So ideally, if you will see this recording ना, तो एक बार ये बुक को भी धीरे पॉज कर करके पढ़ लेना. इस सबको उसमें मैंने वो चार्ट में डाला था. When a client makes an error, it's necessary to decide once an error has been discussed to refuse करता है HMRC को इन्फॉर्म करने से क्लाइंट, तो आपको उस क्लाइंट के लिए काम करना बंद कर देना चाहिए. वो जो चार्ट में आ रहा था वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है. दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है,
मनी लॉन्ड्रिंग, दिस इज व्हाट यू सॉ इन द वीडियो। और एक ये लास्ट टॉपिक है डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ टैक्स एजेंट, दैट सिंपली सेज कि अगर कोई भी टैक्स एजेंट ऑनेस्टली काम नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लर्न मत करना, अक्रॉस द सिलेबस पेनल्टीज बहुत सारी है, इनको मगअप करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो रादर लेट्स बी प्रैक्टिकल, जो कर सकते हैं वही करना। Okay, test your understanding 3 का आंसर। Which of the following is a statutory legislation? Case law, extra statutory concession, HMRC statement of practice, income tax Act 2007। बताओ, statutory legislation कौन होता है? Act होता है statutory legislation, act, right? Act is 2007 वाली act। अब आते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 पे। दिस आइडियली यू शुड बी एबल टू आंसर विदाउट रीडिंग द चैप्टर फर्स्ट। An ACCA member discovers that a client has deliberately not declared a source of income on their income tax return. ये tax avoidance है, tax evasion है? Evasion. It's an evasion. You are hiding information. Which of the following statements is correct? The member should immediately notify HMRC of the error. Immediately HMRC को बता देना चाहिए। दूसरा, the member should notify the client of the error and explain the consequences before considering ceasing to act। यानी क्लाइंट के लिए काम करना बंद करने से पहले आपको क्लाइंट को बता देना चाहिए कि इसको हाइड करने के रिजल्ट्स क्या होंगे। थर्ड, the member must immediately make a report to National Crime Agency due to the possibility of money laundering and notify the client that they have done so। यानी इमीडिएटली क्लाइंट से बात करे बिना सीधा आपको बता देना चाहिए नेशनल क्राइम एजेंसी को, और क्लाइंट को भी बता देना चाहिए कि आपने ऐसा कर दिया है। The member should cease to act for the client if they refuse to disclose the error and advise HMRC that they have ceased to act and the reason why। यानी कि पहले तो आपको काम करना बंद कर देना चाहिए। अगर क्लाइंट मना कर दे कि हम इस एरर को नहीं डिस्क्लोज करेंगे, उसके बाद में आपको एचएमआरसी को सलाह देनी चाहिए, बताना चाहिए कि आपने क्लाइंट को छोड़ दिया है और क्यों छोड़ दिया है। बताओ चारों में से which is the correct statement? Second one. B. Gaurav, you are D. Second. Everybody scream. D. B Gaurav, is correct. eliminate the screen. Yes. Sorry. Yeah. No, I got that. You were trying to mark on your screen. Okay, so which is the correct answer? Second one. Second, B. Yes, ma'am. Yes, absolutely right. B is the answer. ये हट नहीं रहा है क्या? Wait, let me just clear it out. Sure. Next पे आते हैं. Which of the following is an indirect tax? Corporation tax, capital gain tax, income tax, or value added tax? हाँ जी. D. Value added tax. D. Value added tax। ये वाला टैक्स है जो टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में किसी इंटरमीडिएरी को लेके आता है। देन लास्ट वन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 देखो। Which of the following taxes is not paid by a company? अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि ये कंपनी के अंडर है। ये तो कुछ और ही पूछ रहा है, ऑप्शन बहुत ऑब्वियस है। इनकम टैक्स, Income tax. is it paid by a company? Income not paid by company. Income tax. Paid by a company. Corporation tax, yes. National Insurance Corporation, yes. Sorry, contributions. Then value added tax, Income tax. income tax. ठीक है, got this? ये सारे lecture understandings आपके हो गए इसमें। Now these are the answers. Got it? This is Kaplan की book. Basic income tax computation. अब आते हैं second chapter पे. So this chapter is now more, what should I say? Practical. यहाँ से practical पे चालू हो जाएंगे. Just a second.
पीपीटी दिख रही है फॉर चैप्टर 2? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ से अब पोर्शन एग्जैक्ट चालू हो जाता है जो प्रैक्टिकल है, यानी असल में जो एग्जाम्स में आप झेलेंगे, जिनसे आपका सामना होगा. सुजीत, स्टिल देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम? जस्ट चेक इफ एनीवन एल्स इज आल्सो गेटिंग द सेम प्रॉब्लम. मेरी आवाज साफ आ रही है? Yes, ma'am. Clear है. ठीक है सुजीत, जस्ट चेक योर कनेक्शन. शायद उसको सुन नहीं पा रहे हैं से. ओके, यहाँ से आते हैं हम जहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020 जो आपके लिए रूल्स लेके आया है वो आपको यहाँ से समझने पड़ेंगे. एंड रादर आई विल से अब टेक्निकल पोर्शन चालू होता है. सो आपकी ट्रायल क्लास इनकम्प्लीट रहेगी अगर मैं इसको नहीं कराऊंगी, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मुझसे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन. बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन सबसे पहला काम होगा आपका और सबसे मेजर पार्ट भी होगा. इसके प्रिंसिपल्स क्या है, सबसे पहली चीज समझना और यहीं से क्लास में ही लर्न करते चलना. आई डू नॉट वांट कि आपको घर पे लर्निंग में एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा एफर्ट देना पड़े. यही के यही अटेंटिवली सुनते जाओ, लर्न करते जाओ. प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स किसको पे करना है, उसको हम बोलते हैं somebody who is assessed to income tax. कौन पे करेगा उसको असेसी बोला जाता है इंडिया में और यूके में टैक्स पेयर. दैट मींस अ टैक्स पेयर इज असेस्ड टू इनकम टैक्स. पहला सवाल ये आता है. दूसरा सवाल, ऑन व्हाट आर इंडिविजुअल्स असेस्ड टू इनकम टैक्स. यानी कि पहले का तो चलो मैं जवाब दे दूंगी कि इंडिविजुअल्स है जिनको इनकम टैक्स पे करना होता है. किस पे, किस चीज पे इनकम टैक्स पे करना है, उनको अपनी इनकम पे टैक्स पे करना होता है. किस इनकम पे, वो इनकम जो टैक्स ईयर में अराइज हुई है. अब ये टैक्स ईयर क्या है, मतलब हर स्टेटमेंट में एक नई चीज निकल के आती है. पहले इंडिविजुअल्स को टैक्स पे करना है. किस पे टैक्स पे करना है, अपनी इनकम पे जो टैक्स ईयर में अराइज हो रही है या टैक्स ईयर में वो जो कमा रहे हैं. अब ये टैक्स ईयर क्या है. आप बोलोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च. मैम सारी दुनिया जहान में यही टैक्स ईयर तो होता है. नो, टैक्स ईयर यूके में अलग है. इनका टैक्स ईयर होता है 6 अप्रैल से स्टार्ट और 5 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर पे खत्म. कुछ 4-5 दिन का लोचा है. 6 अप्रैल फॉर 1 ईयर से स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर पे जाके खत्म होता है. यानी अगर मैं बोलूं टैक्स ईयर आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आप 2021, नीचे जो ब्लू वाली लाइन है उसको देखना. और दी टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर चालू होगा 6 अप्रैल 2020 से और खत्म होगा 5 अप्रैल 2021 पे. सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये लर्न करो. ये लर्न करने की चीज है इस पूरी स्लाइड में. ये स्लाइड आपसे पीडीएफ में शेयर होंगी, इनसे आप प्रिंट आउट निकाल के अपने लिए नोट्स भी इसमें आप लिख लेना. बट जस्ट कीप अ हार्ड कॉपी ऑफ दीज. सॉफ्ट कॉपी से टैक्स पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि पढ़ने को इतने सारे प्रोविजंस है, इनके प्रिंट आउट्स निकालने हैं आपको. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग टू लर्न, टैक्स ईयर 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2020 के और 2021 के 5 अप्रैल पे खत्म होगा. फर्स्ट थिंग. बात करी हमने कि इंडिविजुअल्स वो असेसेबल पर्संस है, यानी कि all the persons who are resident in the UK they have to pay taxes in UK on their worldwide income. ये एक इतना बड़ा रूल है, इसको दिमाग में बिठा लेना. यानी कि अगर यूके का कोई भी रेजिडेंट है वो पूरी दुनिया से कुछ भी कमा ले, उसको टैक्सेस पे करने हैं यूके में. ये इंडिया में भी है. इंडिया का रेजिडेंट वर्ल्ड वाइड कुछ भी कमा ले, ही हैज टू पे टैक्सेस इन इंडिया. यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, सबसे पहले तो ये पता करना कि कोई यूके रेजिडेंट है भी कि नहीं है. पता लगे यूके रेजिडेंट ही नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व. यानी कि रेजिडेंसी रूल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. पर अभी हम रेजिडेंसी रूल्स पे नहीं जा रहे. ये एक बेसिक रूल है, उसके आगे हम ये जानते हैं कि ये पर्सन है कौन. ये कौन पर्सन है जो यूके में रेजिडेंट अगर हुआ तो अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूके में टैक्स देगा. तो पर्सन के अंदर 3 लोग आ गए. एक और इंडिविजुअल्स आ गए, दूसरे बच्चे भी आ गए और तीसरे मैरिड कपल्स आ गए, स्पाउसेस आ गए. मैरिड कपल्स इन यूके सिविल पार्टनर्स, बॉय बॉय गर्ल गर्ल,
वो भी स्पाउसेस में ही माने जाते हैं, उनको टर्म किया जाता है सिविल पार्टनर्स। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हो गई पर्संस की यूके के हिसाब से। सारे इंडिविजुअल, बड़े, फीमेल, मेल, सीनियर सिटीजन फीमेल, एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड अंडर इंडिविजुअल्स। दूसरी कैटेगरी बच्चे। तीसरी कैटेगरी स्पाउसेस। हस्बैंड एंड वाइफ, they are treated separate individuals, they are not treated as a unit। वैसे ये बट ऑब्वियस है कि यूनिट तो इनको नहीं माना जाता है। हम एक एक इनकी डेप्थ में जाते हैं। मैरिड कपल की बात करते हैं, इनकी इनकम एलोकेशन के ऊपर स्पेशल रूल्स चलते हैं। क्या स्पेशल रूल्स हो सकते हैं? लेट्स, एक इनके पास प्रॉपर्टी है, वो जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से इनकम आती है, तो इसको अज्यूम करते हैं फ्लैट है, जॉइंट ओनरशिप हस्बैंड वाइफ की दोनों की इस फ्लैट पे, और इस फ्लैट को इन दोनों ने रेंट पे दिया हुआ है जहां से इनको इनकम मिलती है। HMRC इसके ऊपर टैक्स कैसे लगाएगी? इस इनकम को स्प्लिट कर दिया जाएगा दोनों में 50-50%। अगर जॉइंट ओन प्रॉपर्टी है तो दोनों में 50-50% स्प्लिट कर दिया जाएगा। ये टैक्स के रूल्स चालू हो गए हैं, प्रोविजंस चालू हो गए हैं जो मैंने स्टोरी की तरह बिल्ड किए हैं, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू रिटेन। ठीक है, जहां पे भी मैरिड कपल्स एक असेट को जॉइंटली ओन करते हैं, अगर उस असेट से कभी भी कोई इनकम आती है तो वो 50-50% दोनों में बढ़ जाती है। लेकिन जहां पे उनका शेयर अलग है, लेट्स सपोज एक हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने एक फ्लैट खरीदा, हस्बैंड ने 80% अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, वाइफ ने 20% किया, और यही प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप वो चाहते हैं कि 80-20% ही रहे, तो उनको HMRC को बतानी पड़ेगी ये बात कि 80% इस घर के ओनर हस्बैंड है, 20% वाइफ है। तो इससे जो भी किराया आएगा, जो भी रेंट आएगा, 80% हस्बैंड का और 20% वाइफ की इनकम में जुड़ेगा, और अकॉर्डिंगली फिर वो उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। राइट? क्या ये स्लाइड क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, वन मोर थिंग ऑन दिस, नीचे मैंने लिख दिया वैसे यहाँ पे कि एग्जैक्टली सिविल पार्टनर्स को भी आप वैसे ही डील करेंगे जैसे मैरिड कपल्स को आप ट्रीट करते हैं, यानी जैसे हस्बैंड वाइफ होंगे वैसे ही बॉय बॉय गर्ल गर्ल। ऑल्दो सिविल पार्टनर लिखेंगे वो इतना डीप में वो भी नहीं जाएंगे, बट द रूल्स आर एब्सोल्युटली सेम फॉर देम व्हिच अप्लाई इन केस ऑफ मैरिड कपल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। यहाँ तक तो हमने बात करी मैरिड कपल की। सेकंड पर्सन में दूसरी कैटेगरी थी बच्चे, यानी 2 साल का बच्चा भी टैक्स पे करेगा। इन्होंने क्लैरिफाई किया, यस, 18 साल से कम का बच्चा असेसेबल होता है, यानी कि उसकी इनकम टैक्स की जाती है, वो टैक्सेबल पर्सन में आता है। तो आप ये सोचोगे यार कि 18 साल से कम के बच्चे की इनकम क्या होगी जो उस पर टैक्स लगाओगे। होते हैं यूके में बहुत बच्चे होते हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, दे अर्न मनी। कई बच्चे 14-15 साल की उम्र में दे स्टार्ट सर्विंग पिज्जाज, पिज्जा हट में नौकरी करने लगते हैं, तो इनकम तो हो रही है। तो इन्होंने इसके लिए बोला कि जो 18 ईयर्स से नीचे का बच्चा है हम उसको भी टैक्सेबल पर्सन मानते हैं, मतलब उसको अपनी कमाई पे टैक्स पे करना है। राइट? नेक्स्ट कैटेगरी पे ये बेसिक फॉर्मेट है। अब दूसरा पार्ट है जो लर्न करने का आपको ध्यान रखना है। ये वो बेसिक फॉर्मेट है जो पूरे टैक्स में हम यूज करेंगे। पहले के 4 इनका सीक्वेंस चेंज नहीं करना, इस सीक्वेंस को ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही रखना है, डू नॉट ट्राई टू चेंज इट सीक्वेंस। सेक्शन सी के क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस में हम सॉल्यूशंस करेंगे, इनको समझते जाओ। एक इंडिविजुअल है, वो कहीं नौकरी भी करता है और पार्ट टाइम वो अपना बिजनेस भी करता है, यानी बिजनेस से आने वाली इनकम ट्रेडिंग इनकम, जहां नौकरी कर रहा है वहां से आने वाली सैलरी एम्प्लॉयमेंट इनकम। अब ये बहुत पैसे वाला बंदा है, इसके पास एक फ्लैट भी है, इसने उस फ्लैट को किराए पे दिया हुआ है, प्रॉपर्टी इनकम। और इसने पहले किसी पेंशन स्कीम में भी पैसा डाला हुआ था, वहां से पेंशन भी आती है, पेंशन इनकम। यानी एक ही इंडिविजुअल की ये चारों इनकम हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल की इसमें से 2 ही है बाकी दोनों नहीं है, या 3 है बाकी एक नहीं है। बट दीज 4 हेडिंग्स कवर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम जो एक इंडिविजुअल कमा सकता है। जहां जहां से जो जो इनकम आ सकती है वो सब इन चारों हेड्स में आ जाएंगी इंडिविजुअल की। ये तो आती है पूरी की पूरी उसकी सेविंग्स की वजह से या नॉन सेविंग्स की वजह से, लेकिन सेविंग्स से भी तो कोई इनकम आती होगी। ये तो सारी ऊपर वाली चारों तो आपकी सेविंग्स
इनकम नहीं है, ना तो मेरी सैलरी मेरी बचत से आ रही है, ना मेरी बिजनेस की इनकम मेरी बचत से आ रही है, वो तो बिजनेस से आ रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने बैंक में एफडी करा रखी हो, उससे इंटरेस्ट आता हो, वो मेरी सेविंग्स इनकम है। तो सेविंग्स इनकम में आपके पास यहाँ पे दो ही मेजर चीजें हैं, एक डिविडेंड, दूसरा आपका सेविंग्स। वैसे डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट इनकम माना जाता है, इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम डिविडेंड इनकम, लेकिन इसको बोलते हैं हम सेविंग्स इनकम के अंडर है। अब सेविंग्स इनकम में क्या क्या आएगा? पहला, बैंक इंटरेस्ट, बैंक में जो भी पैसा जमा है इस पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, दैट्स योर सेविंग्स इनकम। दूसरा, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट। अब आप ये पूछेंगे बिल्डिंग सोसाइटी क्या है? एक फंड बनाना, कुछ मेंबर्स मिलके फंड बनाते हैं, उसको सोसाइटी का नाम दिया जाता है। जैसे निधि फंड होता है, चिट फंड होता है, उस तरह की सोसाइटीज बनाई जाती है जहां पे मेंबर जो होते हैं उनको जब जरूरत पड़े तो सोसाइटी से उनको लोन मिल जाता है। फार्मर्स एसोसिएशन होती है इंडिया में, उसी तरह का बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट होता है। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग नहीं, एक सोसाइटी को बनाने पे आने वाला इंटरेस्ट। जैसे किट्टी डालती है लेडीज तो वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है, हालांकि उस पर इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन जब भी आप कभी भी कोई सोसाइटी क्रिएट करते हैं उसमें जब भी मेंबर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, और मेंबर्स में से किसी को भी लोन चाहिए होता है तो लोन भी मिल जाता है। इसे बोलते हैं सोसाइटी बनाना। तो बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट उस सोसाइटी से आने वाला इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ही, इसलिए उसको सेविंग्स इनकम में डालते हैं जहां पे आप अपना पैसा बचा के वहां इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी हुई, एक नॉन सेविंग्स इनकम जिनका बचत से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा सेविंग्स इनकम। इनको मिला के आपकी टोटल इनकम आती है। इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना, टोटल इनकम, नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम, इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। टोटल इनकम मतलब आपकी इनकम कहां कहां से आ सकती है उसका टोटल। तो वन, यू कैन अर्न फ्रॉम नॉन सेविंग्स इनकम, उसकी चार कैटेगरीज हो सकती है। बिजनेस से कमाना, ट्रेडिंग इनकम, सैलरी से कमाना, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी से कमाना, प्रॉपर्टी इनकम, पेंशन से पैसा आना, पेंशन इनकम। ये चारों की चारों नॉन सेविंग्स इनकम हो गई। अब आते हैं सेविंग्स इनकम पे। तो सेविंग्स इनकम में एक तो सेविंग्स से आता है इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट और बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की वजह से भी इनकम आता है। आप पैसा सेव करते हैं फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उस पर डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड भी आपकी कमाई होती है। इन सबको अगर जोड़ दो आपके पास आ जाती है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में से आपको कुछ रिलीफ देता है डिपार्टमेंट, एचएमआरसी। वो बोलता है कि नहीं यार, जो कमाओगे उस पर तो सारे पे टैक्स क्यों दो, हम कुछ आपको रिलीफ भी देंगे। ये रिलीफ यहाँ से माइनस जब होती है तो आपको मिलता है नेट इनकम। ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड नेट इनकम। टोटल इनकम से रिलीफ जब माइनस होती है तो नेट इनकम आती है। दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं। रिलीफ मिलने के बाद में नेट इनकम बचती है, आप माइनस करते पीए। अब ये पीए क्या है? पर्सनल अलाउंस। इंडिया में इस तरह का कोई अलाउंस नहीं होता। तो पर्सनल अलाउंस सबसे बड़ा सहारा होता है यूके के टैक्स पेयर का, क्योंकि इससे इसकी इनकम कम होती है और भी बची हुई इनकम होती है, तो फाइनली टैक्स इस पे लगता है। यानी लास्ट वाली इनकम को हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। तो इसका डिटेल मैंने यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया है कि फर्स्ट चार नॉन सेविंग्स इनकम होती है, सेविंग्स और डिविडेंड सेविंग्स इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम में आती है, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप फाइनली टैक्स पे करते हैं। इस चार्ट को फटाफट 2-3 मिनट लगाओ, क्विकली लर्न करो, मैं भी सुनूंगी सबसे, क्विकली लर्न कर लो इसको विद द सेम सीक्वेंस। हो गया डन? यस मैम। पूछ लो ना पक्का।
ओके चलो, मैं पहले ही दिन तुम्हें इतना नर्वस नहीं करूंगी। वैसे आई हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग रैंडमली, बीच में यहीं पे लर्न करा के, और मैं पूछती हूँ। आज ट्रायल क्लास है तो चलो ठीक है, छोड़ दिया आज, ठीक है। पर वापस से मुझसे सुन लो ताकि दिमाग में बैठ भी जाएगा। तो एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम दो कैटेगरीज में क्लब्ड होती है, नॉन सेविंग्स इनकम, सेविंग्स इनकम। नॉन सेविंग्स इनकम की 4 मेजर कैटेगरीज होती है। सबसे बड़ी इनकम जो एक इंडिविजुअल को मिल सकती है वो उसकी ट्रेडिंग इनकम से आती है। दूसरी सैलरी, एम्प्लॉयमेंट इनकम से। तीसरी रेंट जो आता है प्रॉपर्टी पे, दैट इज प्रॉपर्टी इनकम से आने वाली इनकम। एंड लास्ट पेंशन इनकम, जो पेंशन में उसमें फंड में इन्वेस्ट किया होता है और आज उसको पेंशन मिल रही होती है। उसके बाद में हम कैटेगराइज करते हैं सेविंग्स इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम को। एक इंसान अपनी बचत से भी कुछ इनकम कमाता है, यानी वो इंटरेस्ट की फॉर्म में होता है। वो इंटरेस्ट बैंक से आने वाला भी हो सकता है और एक सोसाइटी बनाने की वजह से भी आ सकता है। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स करके भी वो कुछ इनकम कमाता है, दैट्स डिविडेंड इनकम। दिस गिव्स यू द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो टोटल इनकम है उसमें से एचएमआरसी कुछ रिलीफ देती है, रिलीफ माइनस करके टोटल इनकम बन जाती है नेट इनकम। नेट इनकम मतलब फाइनली सब कुछ कम कर करा के अब ये फाइनल नेट इनकम बनी है, जैसे नेट प्रॉफिट होता है। उसमें से लास्ट आपको अलाउंस मिलता है पीए का, पर्सनल अलाउंस। इनकम बचती है, ये वो इनकम होती है जिसपे आप फाइनली टैक्सेस पे करते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको पूरे टाइम पूरी बुक में यूज होता हुआ मिलेगा। विदाउट दिस फॉर्मेट आपका टैक्स का पेपर आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपको अभी लर्न नहीं भी हुआ है तो भी ये यूज करते 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 ऑलरेडी टिप्स पे बैठ जाएगा। सो नथिंग टू वरी ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं इसमें। एग्जेम्प्ट इनकम, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम भी होती है। तो क्वेश्चन क्या करेगा, आपको कुछ इनकम देगा जिस पे टैक्स लगाना होगा, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम भी उसमें डालेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगता। पहली कैटेगरी ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम एनएस&आईज, ये इंडिया में भी होता है। नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, ये इंडिया में भी होते हैं। हर देश में इस तरह के सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट इशू करती है, जहां से आने वाला कोई भी इंटरेस्ट आप पे टैक्सेबल नहीं होता है, तो आप उस पे टैक्स नहीं देते हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स पे आने वाला इंटरेस्ट, इस पे देयर इज नो टैक्स व्हिच यू हैव टू पे, दैट्स एग्जेम्प्ट। दूसरा, ये इंडिया में फ्री नहीं है। गेमिंग, लॉटरी, प्रीमियम बॉन्ड्स विनिंग, ये इंडिया में फ्री नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति? जब पहले 1 करोड़ का इनाम प्राइज उसमें हुआ करता था, असल में कोई करोड़पति बनता नहीं था। व्हाई? अगर किसी ने 1 करोड़ का प्राइज मनी जीत भी लिया, गवर्नमेंट ने उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% की टैक्स रेट लगाई हुई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 30%। तो करोड़पति but that's 70 lakhs. You are not a crorepati. And this was the argument because of which Kaun Banega Crorepati had to raise its amount of prize money. ये बीच में आता था कि करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति, तो करोड़ जीतने के बाद भी नहीं बनते हैं। लेकिन अब सिचुएशन इज डिफरेंट। तो इंडिया में इट्स कंप्लीटली टैक्सेबल, बट यूके में गेमिंग से, लॉटरी से या फिर किसी भी प्रीमियम बॉन्ड की विनिंग से अगर आपको कोई भी इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट मानी जाती है। तीसरी एग्जेम्प्ट इनकम, सॉरी एंड पे आ गए हम। तीसरी एग्जेम्प्ट इनकम इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एन आईएसए, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। एक इंडिविजुअल था, उसने अपना सेविंग्स अकाउंट खोला, उस पे जो भी इनकम आती रहेगी वो एग्जेम्प्ट होगी। इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट्स अलग होते हैं। आपका नॉर्मल एफडी में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो हम सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स इनकम में लास्ट वाले फॉर्मेट में टैक्स करेंगे। तो ये सिंपल जो सेविंग्स अकाउंट से बच रहा है इंटरेस्ट, वो एग्जेम्प्ट माना जाता है। इंडिया में सेविंग्स अकाउंट पे कुछ 2-3% के आसपास की इंटरेस्ट आप कमाते हैं, लेकिन एफडी पे आप 8% तक कमाते हैं, पीएफ अकाउंट पे आप 8% तक कमाते हैं। तो जो पिछले फॉर्मेट में, जो अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने फॉर्मेट देखा था, उसमें जो हम बैंक इंटरेस्ट टैक्स कर रहे थे वो वाला था जो स्पेशल केसेस में होता है, यानी एफडीज में हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स में हो। लेकिन जहां भी क्वेश्चन बोले कि आईएसए से कोई इनकम हो रही है, यानी इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट से कोई भी इनकम हो रही है, आपको उसको एग्जेम्प्ट करना है। ठीक है, फटाफट इन तीनों को दिमाग में बिठा लो।
अभी तक हमने टैक्स ईयर पढ़ा है, उसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि स्पाउसेस को हम कैसे इनकम बांट के टैक्स करते हैं। तीसरी चीज हमने वो फॉर्मेट पढ़ी, और चौथी चीज अभी एग्जेम्प्ट इनकम है जो आपको याद रखनी है, एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। चलो लेट्स मूव अहेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, पीए। अगर कहीं भी नोट डाउन कर रहे हो तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, पीए इसको समझना बहुत एसेंशियल है, टिल एंड तक बिना इसके आंसर नहीं आएगा। पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस किसके लिए? हर किसी के लिए। दूसरी चीज कितना है फॉर द टैक्स ईयर 2021, 12,500 सीधा पीए आप माइनस कर सकते हैं किसी की भी नेट इनकम में से। गेटिंग द पॉइंट? टोटल इनकम में से नहीं, टोटल इनकम में से रिलीफ माइनस होती है, फिर नेट इनकम आती है, नेट इनकम में से पीए माइनस होता है, तब जाके टैक्सेबल इनकम आती है। तो नेट इनकम में से आप माइनस करेंगे पीए, फिर जो इनकम आएगी वो टैक्स की जाएगी, यानी उसको टैक्सेबल इनकम बोलेंगे। पीए फॉर द करंट टैक्स ईयर जो इस पे आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए 12,500 है। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है। नंबर वन, the order in which you have to set off PA from the income। तो आपके पास इनकम के इन्होंने अलग अलग कई चीजें बता दी, तीन तरह की इनकम्स बता दी। पहली नॉन सेविंग्स इनकम, दूसरी सेविंग्स इनकम, तीसरी डिविडेंड इनकम। इसी सीक्वेंस में पीए को सेट ऑफ करना है। कैसे सेट ऑफ करना है? हो सकता है मेरी नॉन सेविंग्स इनकम 5,000 पाउंड ही हो, तो मैं क्या करूंगी, पीए तो 12,500 है, सबसे पहले 5,000 की नॉन सेविंग्स इनकम को माइनस करूंगी 5,000 से पीए के नाम पे, फिर कुछ बचेगा तो मैं सेविंग्स इनकम पे लेके जाऊंगी, फिर से कुछ बचेगा डिविडेंड इनकम पे लेके जाऊंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले पीए को डिविडेंड इनकम पे लगा दें, फिर सेविंग्स इनकम पे लगा दें, फिर नॉन सेविंग्स इनकम पे लगा दें। नो, सीक्वेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑर्डर इन विच पीए इज टू बी यूज्ड, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, ऐसा हुआ कि मेरी इनकम 10,000 पाउंड है लेकिन पीए तो 12,500 है, क्या मैं इनकम को नेगेटिव कर दूं? मतलब नेट इनकम तो आ रही है 10,000 पाउंड की, मैं 12,500 को अगर माइनस करती हूँ तो मेरी इनकम तो माइनस में आ जाएगी। एचएमआरसी को बोलूंगी लाओ भाई एचएमआरसी 2,500 पाउंड मुझे दे दो, ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपकी इनकम से ज्यादा पीए है, दैट सरप्लस पीए इज लॉस्ट, ना आगे आने वाले सालों में ले जा सकते हैं, ना ही अपनी इनकम को नेगेटिव बना सकते हैं। यानी सरप्लस पीए, अगर आपकी इनकम से पीए ज्यादा है, ये सरप्लस पीए इन एनी केस इट इज गोइंग टू बी लॉस्ट। नेक्स्ट, और क्या कंडीशन होती है पीए के लिए? इसकी ये कंडीशन ध्यान रखना, जब भी किसी की इनकम में कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन को कम करने के लिए पीए यूज नहीं हो सकता। कैपिटल गेन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया में भी सरकार टैक्स लगाती है, यूके में भी सीधा सीजीटी लगता है, कैपिटल गेन टैक्स सीधा सीधा लगता है, उसमें से कोई पीए का बेनिफिट नहीं मिलता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तीसरी चीज, बचा हुआ पीए है उसको अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग ही सेक्शन है, पूरा अलग ही प्रोविजन है। लेकिन पीए को ध्यान रखने के लिए एक बार इतनी चीजों को ध्यान रखना। पहली चीज 12,500 का पीए होता है, हर इंडिविजुअल के लिए होता है। दूसरा, अगर पीए आपकी इनकम से ज्यादा है तो जो भी सरप्लस पीए होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। यानी ऐसे केस में अगर इनकम 10,000 है तो आप 10,000 का ही पीए यूज करके इनकम को जीरो बनाएंगे, इनकम को नेगेटिव में नहीं लेके जाएंगे, और ना ही बचा हुआ 2,500 का पीए नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। दैट इज कैरी फॉरवर्ड होना, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता पीए, जो इस साल में है उसी में यूज हो जाएगा वरना लॉस्ट। दूसरा केस, कैपिटल गेन को कम करने के लिए पीए यूज नहीं हो सकता। तीसरा केस, अगर पीए कुछ बचा है आप अपने स्पाउस को जरूर वो ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लिए एक नाम दिया गया है मैरिज अलाउंस। पीए जो ट्रांसफर किया जा सकता है उसको बोलते हैं मैरिज अलाउंस। ठीक है, फटाफट ट्राई टू लर्न कर लो क्विकली, रिमेंबर दिस कि पीए 12,500 है।
Okay, ma'am. ओके, रिडक्शन ऑफ पीए पे आते हैं। पीए रिड्यूस हो सकता है, ये एक बेनिफिट है जो एचएमआरसी ने दिया है इंडिविजुअल्स को। लेकिन अगर इंडिविजुअल की एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख पाउंड से ज्यादा होती है तो आपका पीए कम कर दिया जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेंज दैट स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन हल्का सा ऊपर से कट रहा है ना? इज इट क्लियरली विजिबल? इज इट विजिबल गाइस? Yes, ma'am, it is visible. Okay, देखो, so what is PA? Okay, now whatever I am writing, just confirm me if you can see. मैंने PA लिखा है अभी स्क्रीन पे। Yes, ma'am, visible. PA क्या है? PA एक इंडिविजुअल को बेनिफिट की तरह दिया जाता है, लेकिन ज्यादा पैसे वालों को काहे का बेनिफिट? तो इन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख पाउंड से एक्सीड कर जाती है तो हम पीए को कम कर देंगे, यानी उसको 12,500 का बेनिफिट देने की बजाय लेसर बेनिफिट दिया जाएगा एज अ रिडक्शन फ्रॉम नेट इनकम। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एडजस्टेड नेट इनकम, यानी एडजस्टेड नेट इनकम क्या है? मुझे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज एडजस्टेड नेट इनकम। उसके लिए इन्होंने सिंपल एक कैलकुलेशन आपको दी है। एग्जैक्टली ये है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ यही फॉर्मूला इसका लर्न करना है कि एडजस्टेड नेट इनकम क्या होती है। नेट इनकम, ये कौन सी इनकम होती है? नेट इनकम, व्हाट इज दिस नेट इनकम? Total income minus reliefs. बिल्कुल, टोटल इनकम माइनस रिलीव्स से जो आती है वो नेट इनकम होती है। इसमें आपको दो अमाउंट्स माइनस करने हैं। पहला ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, यानी आपने किसी को भी कोई डोनेशन दिया है, कोई गिफ्ट किया है, आपको वो यहाँ से माइनस करना है। दूसरा माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये दोनों अमाउंट्स आपको डायरेक्ट दिए हुए होंगे, लेकिन एक चीज का गैप हो सकता है, ये नेट दिए हो सकते हैं। नेट से आपको ग्रॉस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो 90% केसेस में वो ग्रॉस देगा, वरना वो अमाउंट देगा जो 20% टैक्स डिडक्ट होके आया है। लेट्स सपोज ये आपको देता है 1600 का अमाउंट नेट उसने दिया 1600 का गिफ्ट एड डोनेशन। आपको इसको पहले ग्रॉस करना पड़ेगा। ग्रॉस किस रेट पे करेंगे? 20% पे। ग्रॉस होता है ज्यादा, नेट होता है कम। हम पीएनएल बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखते थे, एग्जैक्टली उसी तरह से होता है। ये नेट छोटा होता है, ग्रॉस ज्यादा होता है। एक ये जो 1600 है, इसको यूनिटरी मेथड से आप ग्रॉस करेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट अमाउंट? लेट्स सपोज 20% इज द टैक्स। कोई अमाउंट रहा होगा x, ग्रॉस अमाउंट, उसमें से x का ही 20% काट के 1600 नेट आ गया। एक ऑप्शन तो ये है कि ये इक्वेशन बना लो, ठीक है। दूसरा यूनिटरी मेथड जिनको भी करना आता है, 1600 इज रिप्रेजेंटिंग 80, आई नीड 100, व्हाटएवर मेथड सूट्स यू, अडॉप्ट एनी मेथड। वापस से सुनो, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। नेट मतलब टैक्स काट के जो अमाउंट दिया गया है, लेकिन यहां आपको लगाना है ग्रॉस। ग्रॉस कैसे निकलेगा? बिफोर टैक्स क्या अमाउंट था। तो लेट्स सपोज आपने बिफोर टैक्स एक्स का अमाउंट डोनेट करना था, लेकिन आपने इसमें से टैक्स काटा। कितना टैक्स काटा? 20% टैक्स काटा। हमेशा 20% ही काटना है, तो 20% आपने टैक्स काटा। एक्स का 20% डिडक्ट करके आपने नेट 1600 डोनेट कर दिया। How will I get x now? This will be 80x upon 100 equal to 1600. इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है? 1600 आफ्टर टैक्स का अमाउंट है, यानी 1600
100 माइनस 20 रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे चाहिए 100। इससे आपका नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। सो दिस कैलकुलेशन यू विल हैव टू डू इन द एग्जाम। 90% ऑफ द केसेस में आपको ग्रॉस अमाउंट डायरेक्ट दिया होता है। इन दोनों अमाउंट को माइनस करते और माइनस करके आपको मिलती है एडजस्टेड नेट इनकम। अब जब एडजस्टेड नेट इनकम अगर आपकी 1 लाख से एक्सीड कर गई तो पीए आपको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना रिड्यूस करेंगे, दैट्स अनदर क्वेश्चन। कितना रिड्यूस करूं, तो आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 50% से। किसका 50%? 1 लाख से ऊपर जितनी भी एडजस्टेड नेट इनकम गई है उसका 50% आपका पीए कम हो जाएगा। अब 2-3 चीजें समझो। पहली चीज, अगर किसी भी इंडिविजुअल की एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख पाउंड से आगे चली जाती है, बढ़ जाती है, तो पीए रिड्यूस करना पड़ता है। अब ये एडजस्टेड नेट इनकम क्या है? एडजस्टेड नेट इनकम होती है नेट इनकम में से 2 अमाउंट माइनस। ये 2 अमाउंट कौन से हैं? पहला ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन, दूसरा ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये दोनों यूजुअली डायरेक्ट गिवन होते हैं। जब इन दोनों में से अमाउंट जो आ रहा है माइनस करके आपको एडजस्टेड नेट इनकम मिलती है, तो आप ये देखते हैं कि क्या ये एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से एक्सीड कर रही है? कर रही है। जितनी भी एक्सीड कर रही है उसका 50% आपको पीए कम करना होगा। यानी ये जो अमाउंट निकलेगा ये 12,500 में से कम करना होगा। दिस इज रिडक्शन। ऐसे केस में अगर एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,000 से ऊपर हो गई तो आपका पीए मिलेगा ही नहीं आपको। ये कैलकुलेशन एक बार समझते हैं। इट वुड बी बेटर इफ यू डू इट प्रैक्टिकली आल्सो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल ब्रिंग द बुक इन फ्रंट ऑफ यू। इलस्ट्रेशन दिख रहा है सामने? Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। Ethan received trading income of 1,10,000 pounds in the tax year. Yes, yes, model, please tell me. दिख रहा है? अच्छा ठीक, ओके ओके, हाँ जी। Ethan received trading income of 1,10,000 in the tax year 2021. He also made gift aid donation of 4,000 pounds gross. डायरेक्ट दिया हुआ है, अगर ये नेट होता तो हम दिमाग लगाते, यहाँ पे तो सीधा सीधा ग्रॉस है। Compute Ethan's taxable income for the tax year 2021. Taxable income क्या होती थी? आप पहले निकालते हैं total income. Whatever I am writing, can you see that? Yes, ma'am. इसमें से फिर आप माइनस करते हैं रिलीज, उसमें से आप माइनस करते हैं पीए। पीए को आप एग्जाम में भी पीए लिखेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्टेबल है। इससे आती है आपकी टैक्सेबल इनकम। दिस इज योर नेट इनकम। टोटल इनकम कैसे निकलेगी? टोटल इनकम कैसे निकलती है? नॉन सेविंग्स इनकम, सेविंग्स इनकम, सबका टोटल लगाओ, टोटल इनकम आ जाएगी। तो इस केस में तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। क्या आपके पास ट्रेडिंग इनकम एक अकेली इनकम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेडिंग इनकम, बाकी सारी लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग इनकम 1,10,000 पाउंड्स, यही इसकी टोटल इनकम हो गई। रिलीज, क्वेश्चन में मेरे पास रिलीफ की फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आई विल नॉट पुट एनीथिंग ऑन रिलीफ। यानी मेरे पास नेट इनकम कितनी आई? 110। यहां तक पहुंच गए? Yes, sir. ठीक है, क्या करना है? तो ये एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से एक्सीड अगर कर गई है तो मुझे पीए को रिड्यूस करना पड़ेगा। और ये तो नेट इनकम तो 110 हो रही है, 1 लाख से एक्सीड कर रही है। दैट मींस आई नीड टू चेक कि एडजस्टेड नेट इनकम का क्या स्टेटस है। सो व्हाट वाज एडजस्टेड नेट इनकम? टोटल इनकम में से माइनस ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन, माइनस ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशंस। यहाँ गिफ्टेड डोनेशन दिए हुए,
मेरे पास इनकम है 110 की, इसमें से मेरे पास ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन आते हैं 4000 के, आई रिड्यूस इट। एडजस्टेड नेट इनकम कितनी बचती है मेरे पास? बच गई? क्लॉज को वापस सोचो। एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख पाउंड से ऊपर जा रही है। कितनी ऊपर जा रही है? 6,000 6,000 का 50% पीए रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस पीए बाय हाउ मच अमाउंट? 3,000 3,000। रिड्यूस पीए बाय 3,000 पाउंड्स, यानी मेरे पास रिवाइज्ड पीए कितना है? 12,500 में से 3,000 को हमने कम कर दिया, बचा कितना? ठीक है, यानी इस इंडिविजुअल को पूरा 12,500 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 9,500 का मिलेगा। तो पीए में यहाँ पे माइनस होगा 9,500। जो बचेगी वो आपकी नेट इनकम बचेगी, जिसपे टैक्सेबल इनकम बचेगी, जिसपे आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है, क्या आप समझ में आया कि ये रिडक्शन ऑफ पीए कहाँ पे काम आएगा? ये किसी भी केस में काम आ सकता है, और मोर ऑफन ये काम आएगा क्योंकि आपको जो इंडिविजुअल दिया जाएगा उसकी इनकम बहुत ज्यादा दी जाएगी, अलग अलग सोर्सेस से दी जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी देयर। हमें ध्यान से कितना रखना है, जहां पे भी ये टोटल इनकम 1 लाख से एक्सीड कर गई, यानी पीए रिड्यूस होने का केस हो सकता है। पीए रिड्यूस करना चेक तो वैसे भी करना पड़ेगा, तो एएनआई सबसे पहली चीज कैलकुलेट करो। व्हाट इज एएनआई? आपकी टोटल इनकम में से दो अमाउंट से माइनस करने, ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन और ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, बस ये दो अमाउंट माइनस करने। ये अगर 1 लाख से ऊपर आती है तो जितनी भी ऊपर है उसका 50% पीए कम करना है, जितनी भी ऊपर है उसका 50% पीए कम करना है, यानी ये पीए देना नहीं है, कम करना है। 3,000 से पीए कम हो जाएगा। अब स्लाइड में नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि जिसकी भी एडजस्टेड नेट इनकम 125,000 से ज्यादा है उसको पीए मिलेगा ही नहीं। ये कैसे हुआ, चेक कर लेते हैं अभी। किसी की भी एडजस्टेड नेट इनकम, लेट्स सपोज 125,000 ही ले लेती हूँ, एडजस्टेड नेट इनकम 125,000 आ रही है, ये 1 लाख से कितनी ज्यादा है? 25,000 ज्यादा है, तो पीए कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? इसी 25,000 का 50% पीए रिड्यूस, यानी रिड्यूस पीए बाय 50% ऑफ दिस अमाउंट। कितना कम कर दूं? 12,500 से, तो रिवाइज्ड पीए कितना बचेगा? बचेगा ही कहाँ, 12,500 था, उसमें से ये रिड्यूस कर दिया, अब बचा कहाँ? दिस इज व्हाट द लास्ट कॉलम वाज सेइंग, कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 1,25,000 से ज्यादा हो गई, 1,25,000 पे ही एडजस्टेड नेट इनकम आने का मतलब हो गया पीए नहीं मिल रहा। यानी कई क्वेश्चंस में जहां पे टोटल इनकम आपको दिख रही हो 1,70,000, तो मान के चलो कि एडजस्टेड नेट इनकम की चाहे कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन पीए नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, तो कई चीजों में हम कुछ ट्रिक्स भी लगाएंगे, बट दिस इज स्मॉल एग्जांपल कि किस तरह के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं इस पेपर में। दिस इज हाउ वी विल अप्लाई इट। मैं एक बार आपको वो भी दिखा देती हूँ कि स्लाइड में ये वाली लाइन कहाँ लिखी हुई थी। नीचे वाली लाइन देखो, a taxpayer having adjusted net income of more than 1,25,000 pounds, यानी वैसे तो 125,000 पे आने के केस में पीए 0, और ये एग्जाम में आपको दिया होगा, ये पूरा स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, क्या ये क्लॉज क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we will not give you an overdose of further provisions. Further provisions next trial class में करेंगे। Next trial class will be on Saturday next week, same time. आपके पास उसका लिंक आ जाएगा by Wednesday. But in the meantime, ये रिकॉर्डिंग की एक्सेस आपके पास आने वाले 2-3 घंटे में पहुंच जाएगी। इसको एक बार देखना, जस्ट रिवाइज इट, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। टैक्सेशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उनको धीरे धीरे समझना और रेगुलरली प्रैक्टिस करना ही इस पेपर को पास करने में एक ही इलाज है इसका। अगर आपके पास मेल में हमारे लास्ट स्टूडेंट्स के स्कोर पहुंचे होंगे, तो किसी ने 84 भी स्कोर किए हैं, किसी ने 79 भी किए हैं। दिस इज एन एक्सट्रीमली स्कोरिंग पेपर।
जिसके 84 आए हैं वो रैंक से रह गया बेचारा 1 नंबर से, उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक आ जाती। बट ठीक है, आई मीन 84 इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बैड स्कोर, लेकिन वो लड़का रोज 2 घंटे पढ़ता था, डेली 2 आवर्स। उसका कारण यही है कि ये प्रोविजंस आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, समझाना, एप्लीकेशन कैसे होनी है दैट आई विल हेल्प यू आउट, लेकिन आपको इनको रिमेम्बर रखने के लिए रिविजन तो बार बार करना पड़ेगा। वो करेंगे आप नोट्स से, तो खुद के नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा सीधा इस क्लास को वापस देखना, इन नोट्स को रिवाइज करना और फिर बैठना। एक और चीज, कहीं से भी पढ़ना टैक्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू डोंट डिसाइड टू जॉइन अस, यू जॉइन एनीवेयर एल्स। रिमेंबर वन थिंग, टैक्स को पास करने का एक ही तरीका है, इसको एग्जाम की तरह मत पढ़ना, जस्ट स्टडी इट कंसिडरिंग कि हमें ये समझना है कि इसमें होता क्या है, क्योंकि हमें आगे चल के बेस्ट टैक्स एडवाइजर काम करना है, खूब पैसे बनाने हैं। ये सोच के चलोगे तो टैक्स इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और अपने आप दिमाग में भी बैठा रहेगा। एंड बिकॉज दिस पेपर हैज गॉट लॉट ऑफ प्रोविजंस, इसीलिए हर इंडिविजुअल को एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है टैक्स एडवाइजरीज में। दैट इज व्हाई दिस प्रोफाइल इज टू मनी मेकिंग प्रोफाइल। तो अपने लिए पूरे सेल्फिश हो जाओ, मुझे समझ में आना चाहिए, एंड टेक अ कॉल बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन व्हिच आई नीड टू आंसर? कहीं भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, एनीवन, बिना डरे पूछ सकते हो। इस बैच में सब इतने सीधे हैं या मैं बहुत अच्छी ट्रेनर हूँ कि किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है? हेलो, थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलो। इसमें थ्योरी पार्ट कितना होगा, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी परसेंटेज? मिक्स है, आई मीन आई विल से थ्योरी पार्ट इज नॉट मोर देन 25%, लेकिन वो सब आपका प्रोविजन बेस्ड ही है, जो प्रोविजन हम समझेंगे थ्योरी उसी में से ही आएगी। मतलब जैसे अभी किया था कि डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है, कौन सा कंपनी को पे नहीं करना होता है, इसकी थ्योरी भी इसी तरह की है। ओके, ठीक है, तो थ्योरी में यू वोंट फाइंड कि कुछ क्रिएटिव मिलेगा जो आपको फंसाएगा। दिस इज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? Ma'am, when next class will start? सैटरडे, नेक्स्ट वीकेंड, फिर सैटरडे संडे वी विल बी इन फ्लो। ठीक है, बिकॉज वीकडेज में लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट जॉइन टुडे आल्सो। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके मैसेजेस वी रिसीव्ड इन द मॉर्निंग, तो ऑफिस वाले भी जो है वो वीकडेज में नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर वी डू इट ऑन नेक्स्ट सैटरडे ओनली। तो तब तक यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग आल्सो विद इन 2-3 आवर्स, क्योंकि जूम थोड़ा प्रोसेस करने में और एक वीडियो को कंप्रेस करने में टाइम लगाता है, सो दैट टाइम वी नीड, एंड विद इन 2-3 आवर्स यू विल गेट द एक्सेस ऑफ द रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज पीपीटी आल्सो यू विल रिसीव। पीपीटी में जितना कवर किया है वही मिलेगा, आगे वाला नहीं मिलेगा, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अगर मेरे सुने बिना पीपीटी देखने लगोगे तो इट विल बी वेरी डैमेजिंग। ठीक है, ठीक है गर्ल्स। कल्पना डिडंट से एनीथिंग। अच्छा गाइस, आई हैव अ हैबिट ऑफ कि क्लास में रेगुलरली जब हम चालू हो जाएंगे ना, फिर मैं बीच बीच में आपसे पूछा करूंगी, तो यू विल हैव टू रिमेन वेरी अलर्ट। और हो सकता है किसी दिन आप लोग अलर्ट नहीं रहे तो नेक्स्ट डे से मैंने वीडियो भी ऑन करानी चालू कर देनी है। सो द होल आइडिया ऑफ अ लाइव क्लास इज टू कीप यू आल्सो अटेंटिव इन द क्लास। ओके, Okay, there ma'am. is no other question. Let's catch up on next Saturday again, and we'll give you the recording access shortly. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Ma'am, Yes, ma'am, I don't have any questions related to class, but then I want to speak personally to you regarding combination of paper which I can choose. So, okay. You give me a call. I am just closing down the meeting. okay, ma'am. Sure. Okay? Chalo. Okay. Bye, everyone. Bye. Bye, ma'am. Bye, Sujeet. Bye.